माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे माननीय सांसदों का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करने का अवसर दिया जिससे न केवल देश का किसान अपितु देश की 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या दुखी है, संकटग्रस्त है। यह मुद्दा है देश के अन्नदाता का, यह मुद्दा है उसकी बढ़ती आत्महत्या का, और यह मुद्दा है देश के 70% जनसंख्या का जो कृषि कर्म से जुड़ी है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान पीयूष। Honorable Speaker, Madam, I feel obliged to be able to speak in front of this House, and I'd like to thank the Member of Opposition for calling my attention. Our government has been bringing a policy in this technological reforms that help the farmers to increase production and help them to carve out a niche for themselves so they don't have to live hand to mouth. Farmers have always been the backbone of the country, Madam Speaker, and our government is striving to strengthen this backbone through solid, innovative measures. For instance, a Krishi Vikas Yojana has been launched to motivate groups of farmers to take up organic farming. A unique scheme has been seen in the northeastern region to promote organic agriculture and the export of the organic produce. Soil health cards have been introduced to enhance productivity of specific crops sustainably and will be issued to all 14 crore holdings in the coming time, and 248 lakh samples are to be analyzed in a 3-year cycle. Madam Speaker, the list does not end here. E-NAM, that is E-National Agriculture Market, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, National Mission for Sustainable Agriculture, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, National Scheme for Welfare of Fishermen and Micro Irrigation Fund, etc., are just some of the many policies that our government brings forward for the farmers, and thus the opposition cannot say that our government hasn't been doing anything. Thank you. श्रीमान पराक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आदरणीय कृषि मंत्री जी की बात सुन रहा था जिससे मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, थोथा चना बाजे घना। इनकी सरकार की ऐसी ही खोखली किसान हितैषी नीतियों से ही तो हमारे देश के अन्नदाता की यह दुर्दशा हो गई है। Okay, बेटा, okay, enough. Guests are here.
Our distinguished guests are here with us today. I request everyone to keep their mobile phones on silent mode and maintain the decorum of the house, please. Please take your seats. A very warm welcome to all present here to the 16th National Youth Parliament Competition organized by Himachal Pradesh National Law University Shimla in collaboration with the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India, New Delhi. The objective of Youth Parliament scheme is to strengthen the roots of democracy, including healthy habits of discipline, tolerance of the views of others, and to enable the student community to understand the working of our parliamentary institutions. This year, around 38 universities and colleges all over India have participated in this prestigious competition. All the participating teams have been divided into 6 different zones, constituting of 6 to 7 teams in each zone. From each zone, one team shall qualify for the national round to be held in the Parliament of India itself, and hence, at the national level, the competition shall be amongst 6 best teams to become the ultimate winner of the 16th National Youth Parliament Competition. 6 best students shall be given prizes by the Indian government in the program to be held in New Delhi, and we will also be giving 6 best prizes to the 6 best speakers today. HPNLU Shimla team shall be adjudged by the 3 eminent personalities present here with us today. Our chief guest to the event, Mr. Virender Kashyap, former member of LOK Sabha from Shimla, HP. Our guest of honor to the event, Professor Dr. Sanjay Sindhu, Director UNS Shimla. Dr. B. Momin, who is Donor Coordinator and has been nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India, and in whose hands the fate to qualify the zonal rounds lies. I, on behalf of HPNLU family, extend a very warm welcome to all the judges and thank you so much for taking out time from your respective busy schedule. I request Piyush Raj to welcome Mr. Virender Kashyap with the bouquet, please. I request Parakaram to welcome Professor Dr. Sanjay Sindhu with the bouquet, please. I request Vanshika to welcome Dr. B. Momin with the bouquet, please. I request our Honorable Vice Chancellor Madam and worthy Registrar Sir to escort our guests for the lighting of lamps and Miss Sunaina to assist, please.
I request, Sir, Registrar Sir, to escort back the guests to their respective seats, please. I humbly request the gathering present here to stand for the Kuldeep, and I am very happy to share with you the fact that our Kuldeep has been written and composed by our Honorable Vice Chancellor, Dr. Nishtha Jaswal ma'am. Kuldeep has been written and composed by our Honorable Vice Chancellor, Dr. Nishtha Jaswal ma'am. Kuldeep has been written and composed by योगः करं सुकौशलम् योगः करं सुकौशलम् हिमाचल प्रदेश राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय विश्व गुरु बनना है क्यों न गुरूर करें हिमालय से ऊंचा मस्तक जिसका दूरदर्शिता आसमान की परतें चिरे हवाएं झूम झूम नाम ले जिसका बर्फ कोमलता में दृढ़ता भरे देवी विधि के हर विधान की मस्तक झुके कर वेदी है संविधान की प्यार करे शक्ति शासन के प्राण की और अपने भारत देश महान की तथ्य से अवगत करा तत्व अंगीकृत कराए तर्क को अंगीभूत करा वितर्क की पूर्ण आहुति डलवाए कहता है हर युवा यहाँ लेखनी और वाणी वीर बने कानूनी मदद का दरिया बहा वाद विवाद प्रतिद्वंदी बने के आंचल से चुरा सफेदी चलाओ न्यायालय संस्कारों से मिटाए अन्याय श्वेत श्याम वर्दी ख्याति बढ़े देवभूमि की जिससे न्याय की देवी का रूप सजा जा स्थापित करे सिंहासन सुनहरा कुंदन बन सुमरे विद्यार्थी यहाँ सारे जग में एक होना हिमाचल प्रदेश राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय विश्व गुरु बनना है क्यों न गुरूर करें गुरु बनना है क्यों न गुरूर करें गुरु बनना है क्यों न गुरूर
He has held various positions like Chairman, HP Marketing Board, Member Standing Committee on Water Resources, Member Consultative Committee, Ministry of Tourism and Transport, Chairman Advisory Committee on Food Corporation of India, HP, Member Committee on Food Management in Parliament House Complex, Member Standing Committee on Information and Technology, Member Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme, Member Consultative Committee, Ministry of Social Justice and Empowerment, Member National Monitoring Committee for the Education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disabilities. Sir has published fortnightly paper Him Jan Chetna as an editor and proprietor. He is founder of Samajik Dalit Pirit Utthan Sansthan for the upliftment of socially depressed communities. Sir worked for the welfare of students as student leader of Himachal Pradesh University, worked for the welfare of teachers while serving in Himachal Pradesh Education Department as lecturer of physics, worked against the exploitation of farmer community in Himachal Pradesh. He is working and propagating continuously for the cause of women. Sir has visited many countries including Egypt, Germany, Greece, Holland, Israel, Spain, and Turkey. We heartily welcome you, sir. Our next guest, our guest of the honor, Professor Dr. Sanjay Sindhu, is presently serving as Director and Professor of University Institute of Legal Studies, Evloj Chora Maidan, Shimla, Himachal Pradesh University. Sir has more than 23 years of experience in teaching and research and has been teaching LLB, LLM, MCA, MTech classes. Sir specializes in constitutional law, business law, property law, banking law, and cyber law. Sir has more than 70 papers published in his name. He has published 4 books, and the latest one was released by Honorable Justice Satyen Vaidya, Judge, High Court of Himachal Pradesh, and very shortly his 5th book on contribution of High Court of Himachal Pradesh in protecting environment is coming. He has also published 1 journal. He has chaired more than 25 conferences and presented more than 50 papers in various seminars, conferences, webinars, workshops at national and international level. He completed 3 research projects, has guided 5 PhDs and 60 master degrees. He is a member in the editorial and advisory board of various journals. Dr. Sindhu also remained as special resource as well as keynotes person in various universities, colleges, institutions, as well as UGC Human Resource Development Center. He is also a member of various academic bodies, inspection committees, and regulatory bodies. He is also an inquiry officer of service matters, discipline, redressal issues in Himachal Pradesh University. Sir got special prize from Governor of Himachal Pradesh for translating ordinances. He is a member of state government bodies in amendments for existing legislations. Sir has visited Philippines, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. We heartily welcome you, sir. Our third judge of the day is Dr. B. Momin. Sir was born in Udaipur, Rajasthan. He did his MA, PhD in political science and MA in public administration. He started his job from Government College in 1980 and joined MLS University, Udaipur in 1986. In 1992, he joined Rajasthan Vidyapeeth, a deemed university in Udaipur. In 2011, Rajasthan government appointed him as principal in Government College. Under his supervision, 22 students have been awarded with PhD degree and 65 with MPhil degree. Sir retired on 31st December 2017 and thereafter joined Vidya Bhavan Rural Institute as director of the institute. He is associated with the Ministry of Parliamentary Affairs from the past 20 years. We heartily welcome you, sir. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Madam, Professor Dr. Nishtha Jaswal, to felicitate our guests. Ms. Sunaina, kindly assist.
बेटा आपने बैठने को दिखते हैं। Thank you so much, ma'am and sir. Thank you, Sunela ji. I now request our Honorable Vice Chancellor, Madam, to give her welcome speech. Honorable Mr. Virender Kashyap, former MP from Shimla. Honorable Professor Dr. Sanjay Sindhu, Director, UILS, Himachal Pradesh University. Dr. B. Momin, who is representing the Ministry of Parliamentary Affairs. Heartiest welcome to all of you, along with other dignitaries, my dear students, who are in fact at this moment representing the parliamentarians of India. It's really a great occasion that we got this opportunity to organize 16th National Youth Parliament Competition. What is important in life is competition. It's not what position you get, whether you get a prize or not. It's just immaterial. I appreciate the efforts, the practices which are conducted by my very dear daughters and sons. And at the same time, a note of appreciation for Dr. Ruchi Sapaya, who also worked with them day and night. You must understand that you are going to learn a lot with your practices. I hope you understand it. Your communication skills are going to be polished, and you will be able to understand the system of parliamentary functioning. And I hope whatever you will learn, you will imbibe. And you know, when we talk about parliamentary system, we refer to nobody can use unparliamentary language. That means you will learn how to control your speech, when to speak, how to speak, when not to speak. And you understand the meaning of democracy. Democracy, which is government by the people, for the people, of the people. That means when you're sitting in the parliament, what to do? Because you are the future builders of this nation. We know legislative body is the parliament, all the laws are framed by the parliament. But what principle you learn? It should not be show me the face and I'll show you the law. But every law must have human face. And of course, what we teach you in the classrooms for good governance, that you can learn practically by sitting maybe in a mock mode on the benches, on the seats where the great parliamentarians have been sitting. And I really pray to God that many of you get opportunity to become members of parliament. And I just present a Sanskrit shloka
so that you should be able to imbibe all the values which any ruler of any state, any country must have. स्वस्ति प्रजाभय परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही मनीषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. Which means, I know most of you don't understand Sanskrit. May the rulers of the earth protect the well-being of the people with justice by means of the right path. May there always be good fortune for all the living beings. May all the inhabitants of the world be full of happiness. I'm a poet at heart. I'll present before the three judges are there, other dignitaries are there, my faculty members are there, the students are in the garb of parliamentarians, that, as I said, law must have human face. You must listen to the voice of we the people. Now, this is what I am going to present before you, is the voice of we the people. इतना तो होगा अनुमान तुम्हें, इतना तो होगा अनुमान तुम्हें, नहीं करोगे आभार मुझ पे. Whatever you are doing, that is not an obligation. You are not just influencing or impressing upon us. It's your duty. यूं ही ना गुजारो ताकत के लम्हे, यूं ही ना गुजारो ताकत के लम्हे, करके कोई अत्याचार मुझ पे. सत्ता पर आसीन हो तुम, सत्ता पर आसीन हो तुम, सामर्थ्य में विवश न बनाओ. सत्ता पर आसीन हो तुम, सामर्थ्य में विवश न बनाओ, नैतिक नियमों से मजबूर हो तुम, न्यायालय की राह न दिखाओ. अपनी सनक में न मारना चक, अपनी सनक में न मारना जग अद्भुत है कानून के नियम. कलम चलाते जाओगे थक, कलम चलाते जाओगे थक, बेहतर होगा यदि रखूं संयम. सिंहासन पर संविधान का राज है, सिंहासन पर संविधान का राज है, शासक जनता का मोहताज है. यदि यही तुम्हारा अंदाज है तो ऊंची लोकतंत्र की आवाज है. न उंडेलो अहम की स्याही को, न उंडेलो अहम की स्याही को, बेढंगी कलम खाली हो जाएगी. न उंडेलो अहम की स्याही को, बेढंगी कलम खाली हो जाएगी. खलती रहे सागर को, खलती है खलती रहे सागर को, कागज की नाव उस पर भी चल जाएगी. Now this is the voice of people and the lesson for all the students. Thank you. Sarve bhavantu sukhina. Thank you so much, ma'am, for your kind words and beautiful poetry. Now we'll start with the sitting of the 16th National Youth Parliament session, and I request the judges to fill the scores at the end of the session. All the best. Honorable members, all rise. A very warm good morning to all of you. I welcome you all to the 16th National Youth Parliament session, and I hope this session will be fruitful. We will begin today's session with oath and affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Ms. Chetna, who stands elected from Hyderabad constituency of Telangana, will now take the oath or affirmation. Ms. Chetna, please. Do you want to take the oath or affirmation? The oath. Which language would you take the oath? అందరికీ నమస్కారం.
చేతనా గౌడని నేను లోక్సభ సభ్యురాలుగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసాలు కలిగి ఉంటుందని భారతదేశానికి సర్వసత్తాక్ అధికారము అఖండతను సమర్థించు నేను స్వీకరించకూడదు కర్తవ్యమును శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయొచ్చు. Ms. Asa, who stands elected from Aurangabad constituency of Maharashtra, will now take the oath or affirmation. Ms. Asa, please. Do you want to take the oath or affirmation? The affirmation, please. In which language would you take the affirmation? Marathi. मी आस्था साबू प्रामाणिकपणे प्रतिज्ञा करते की मी कायद्याने स्थापित केलेल्या भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास ठेवीन आणि निष्ठा ठेवीन. मी भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्यासाठी विश्वासूपणे केंद्रीय मंत्री म्हणून माझी सगळी कर्तव्ये पार पाडेन. मी भारतीय राज्यघटनेनुसार भीती किंवा अनुकूलता, आपुलकी किंवा दुर्भावनाशिवाय कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या लोकांचे न्याय करेन आणि माझी सर्व कर्तव्ये पार पाडेन. Honorable members, as we meet today after an interval of 2 months, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague, Pandit Sukhram Sharma, on 11th of May 2022. He was credited with leading a telecom revolution in the country when he was a minister. He was a member of LOK Sabha from Mandi constituency of Himachal Pradesh. He performed a gigantic task of connecting all of the country together. He took his last breath in AIIMS, Delhi. He will always be remembered in the country as the person who led the telecom revolution. May his soul rest in peace. Honorable Madam Speaker, I rise to pay tribute to Pandit Sukhram Sharma. He was a political stalwart hailing from Himachal Pradesh. He led the revolution in the telecom industry and is famously known as the first person ever to make a phone call in India. His contribution to the entire telecom industry will forever be remembered. May his soul rest in peace. We convey our grievances to the bereaved family. माननीय अध्यक्षा जी, आज ये सदन स्वर्गीय पंडित सुखराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुआ है. मैं स्वयं को आपसे और नेता सदन से शपथ करता हूँ. माननीय अध्यक्ष जी, पंडित सुखराम जी का यूं हमारे बीच से चला जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति पूर्ति का बहुत लंबे समय तक पूरी हो पाएगी, मैं ऐसा नहीं समझ पाता हूँ. माननीय अध्यक्षा जी, पंडित सुखराम जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और उनके राजनीतिक कद का पता इसी से चल जाता है कि वे 5 दफे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 3 दफे उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किया और इन्हीं गुणों के कारण 1993 से 96 के बीच वे केंद्रीय संचार मंत्री रहे और केंद्रीय संचार विभाग संभालते हुए जिस तरह की उन्होंने नीतियां लाई, उसी के कारण उन्हें संचार क्रांति और टेलीफोन क्रांति का जनक भी कहा गया. माननीय अध्यक्षा जी, सुखराम जी हमारे लिए अभिभावक के रूप में थे और हमारे लिए बीच से इस तरह से उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखदायी है.
आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से उनके परिवारजनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरा दल इस दुख की घड़ी में उनके साथ है और पुनः आपके माध्यम से अपने और अपने दल की श्रद्धांजलि उनके शोकाकुल परिवारजनों तक प्रेषित करता हूं। The House may stand in silence for a while to express the deep grief and pay homage to the departed soul. Om Shanti, Om Shanti. Secretary General to convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, ma'am. Now I request the Honorable Prime Minister to introduce the new ministers, please. Honorable Madam Speaker, it is my absolute pleasure to introduce to you and through you my colleagues and the newly inducted cabinet ministers. First of all, we have Mr. Ashish Sharma, the Minister of Defence. Next up, we have Mr. Piyush Raj, the Minister of External Affairs. Now the question hour starts. Question number 101, Ms. Yukti, please. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Home Affairs be pleased to say, A, is the condition of line of control normal after the application of Article 370? B, what steps has the Indian government taken to stop the repeated ceasefire violations by Pakistan? C, has the government come up with any strong policy to reduce the unrest and the stone pelting happening in Kashmir Valley? If yes, cite relevant details. माननीय गृह मंत्री श्रीमान अर्पित। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष मैं अपने प्रश्न क का उत्तर देते हुए यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेष रूप से घाटी की जनता, अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही है, अर्थात स्थिति पूर्णतः सामान्य है। अध्यक्षा जी, परंतु मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उनके सामान्य की परिभाषा क्या है। अगर इनके सामान्य की परिभाषा राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तो मेरा इनसे विनम्र मतभेद है। मैं इनकी इस परेशानी, इस स्थिति को सामान्य नहीं कर सकता। अध्यक्षा जी, जब हमारी सरकार ने धारा 370 हटाने जैसे कड़े फैसले लिए तो इन्हीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने हम पर आरोप लगाए थे कि यह एक सांप्रदायिक मुद्दा है। आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक सांप्रदायिक मुद्दा है। क्या ये एक जाति विशेष के लिए था? क्या जम्मू कश्मीर में एक ही जाति रहती है? नहीं अध्यक्षा जी, ये एक जाति विशेष के लिए नहीं, ये एक राष्ट्रहित का फैसला था और ऐसे राष्ट्रहित के फैसले हमारी सरकार बार बार लाती रही। अध्यक्षा जी, इतना ही नहीं, इन्होंने हम पर ये भी उस टाइम बवाल किया था और ये लाई का पाठ बनाया था कि धारा 370 अगर हमारी सरकार ने हटाने का सोचा भी तो घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी, कर्फ्यू सालों सालों तक नहीं जाएगा। परंतु माननीय अध्यक्षा जी, वास्तविक स्थिति आप सभी के समक्ष है। खून, घाटी में खून की नदियां तो दूर, एक गोली भी चली हो तो बताए विपक्ष। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जिस शालीनता और शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष ने प्रश्न पूछा था, उसी शालीनता और शांतिपूर्ण तरीके से मुझे भी अपने प्रश्न का उत्तर देने देंगे। अध्यक्षा जी, अब मैं अपने प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ाते हुए आपको वर्तमान स्थिति से अवगत कराता हूं। आज परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 95.95% उपस्थिति है, जो विपक्ष की सत्ता में धारा 370 हटने से पहले 50% भी नहीं हुआ करती थी। आज आरटी जैसे कानून जो पहले सिर्फ केंद्र तक सीमित होकर रह जाते थे, आज कश्मीर के घर घर तक वो कानून पहुंच रहे हैं। आज कश्मीर के बच्चे बच्चे उस कानून का लाभ उठा पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ धारा 370 हटने की वजह से। अध्यक्षा जी, इतना ही नहीं, आजादी के समय पूरे संपूर्ण भारत में एक जगह ऐसी नहीं थी कि जहां के दामों में वृद्धि ना आई हो, परंतु एक जगह ऐसी जरूर थी जहां के दामों में वृद्धि नहीं आई थी और वो था कश्मीर। हमारी विपक्ष की सरकार ने 70 वर्ष तक कश्मीर के भाई बहनों को अपने हक से वंचित रखा। आज जब हमारी सरकारें उन्हें अपने हक के मुंह बोले दाम दिलवा रही है तो इनको स्थिति सामान्य नहीं लगती। अध्यक्षा जी, यह विपक्ष इन्हीं मुद्दों के सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करता था। आज जब हमारी सरकार ने इनके इन मुद्दों को खत्म कर दिया तो इनको स्थिति सामान्य नहीं लगती। हाँ माननीय अध्यक्षा जी, अगर स्थिति किन्हीं के लिए सामान्य नहीं है तो वो है विपक्ष। अध्यक्षा जी, अब मैं अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जिसमें पाकिस्तान के सीज फायर की बात की गई है। पाकिस्तान के सीज फायर की यह लोग बात करते हैं जिनके शासन नहीं महोदय, आज मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा जो इन्होंने 70 साल तक भारत की जनता पर किया, जिनके राज
जिनके राज में हमारे 10 सैनिक शहीद होते थे और ये 2 मारा करते थे। हमारा आज का भारत, अटल भारत, मजबूत भारत, सशक्त भारत, विश्व गुरु बनने वाला भारत, घर में घुस के बॉर्डर पार जाके पूरे विश्व के समक्ष पूरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उनके 10 आतंकियों को मार के आता है, तो इनको स्थिति सामान्य नहीं लगती अध्यक्ष जी। और इतना ही नहीं, ये प्रश्न करते हैं हमारी भारतीय सेना की काबिलियत पर, हमारी भारतीय सेना के जज्बातों को, हमारी भारत की उस माँ के बेटे पे जिस माँ ने अपना बेटा बॉर्डर पार भेजा है। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से विपक्ष से कि किसने हक दिया इनको हमारे भारतीय सेना पर प्रश्न करने का। अध्यक्ष जी, अब मैं अपने प्रश्न का आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा, माननीय, आज मैं इस सदन के समक्ष साफ शब्दों में और 2 टूक शब्दों में पूरे विपक्ष एवं संपूर्ण विश्व को बोलना चाहता हूं कि 2 थे तब भी राष्ट्र हित में कार्य करते थे, आज 302 है तब भी राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। और शायद इसलिए 302 है। और माननीय साथी, यह भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है। कश्मीर भारत की जन्नत था, कश्मीर भारत की जन्नत है और कश्मीर भारत की जन्नत रहेगा। धारा 370 हटने के बाद हमारी भारत की सेना ने कई पोस्टों को तबाह किया गया है, आतंकियों की 100 से अधिक आतंकवादियों को मार भी गिराया गया है। मेरा भारत उस सोने की चिड़िया का नाम है जिसके पर काटना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम भारतीय उसको वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा याद दिला देंगे। अब मैं अपने प्रश्न के अंतिम भाग गय का उत्तर देना चाहूंगा अध्यक्ष जी, कश्मीर के जिन लोगों को ये पत्थरबाज बोलते हैं, वो पत्थरबाज लोग भी हमारे हैं और वो भारतीय सेना भी हमारी है जिन पर वो पत्थर फेंका करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये पत्थरबाज लोग, बेचारे लोग उन अलगाववादी नेताओं के बहकावे में आकर ये सब कर बैठते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने इन अलगाववादी नेताओं की फंडिंग भी बंद कर दी है। इसलिए शायद विपक्ष को स्थिति सामान्य नहीं लगती अध्यक्ष जी, आज इस सदन के समक्ष इस भारत देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं ये सुनिश्चित और वादा करता हूं अपने भारत के प्रत्येक नागरिक से, वादा करता हूं अपने कश्मीर के भाई बहनों से और वादा करता हूं हर उस बच्चे से कि जिन बच्चों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, हम उन बच्चों के हाथों में पेन, कॉपी और बैग बल्ला देकर दिखाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से एक साइकिल को चलाने के लिए 2 टायरों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक देश को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष की जरूरत होती है। जिस तरीके से हम आशा करेंगे कि जिस प्रकार से हमारी सरकार भारत देश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, उसी प्रकार विपक्ष भी अपना सहयोग प्रदान करेगा। हम प्रतिनिधि पक्ष विपक्ष की राजनीति छोड़कर यह सुनिश्चित और अपना सहयोग प्रदान करेंगे और यह भी सुनिश्चित करता हूं कि अगर विपक्ष अपना कोई जनहित का फैसला लेकर आएगा, जनहित के बारे में बात करके लाएगा, तो उस पर सुना भी जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। अध्यक्ष जी, अब मैं अपने उत्तर को पूर्ण विराम की ओर ले जाते हुए, जो कि हमारे आदरणीय अटल जी की एक कविता की चंद लाइनों के साथ पूर्ण विराम देना चाहूंगा कि अमेरिका क्या संसार हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का फ्रंट नहीं झुकेगा। 1 नहीं 2 नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। Question number 102, Ms. Kaushiki, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक बढ़ावा दिया है, कार्य किया है, परंतु इसे शिक्षा के मूल उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता है किस तरह प्राप्त करेंगे, जो भारत जैसे विविध देश में हर क्षेत्र में व्यापक है। Honorable Minister of Education, Ms. Ananya, please. Honorable Speaker, Madam, National Education Policy approved by the Cabinet on July 29, 2020 states, wherever possible, the medium of instruction in school until grade 5 and preferably until grade 8 should be the home language. With this, India will be emulating a multilinguistic accommodative policy wherein students get the flexibility to study the language of their own choice, and those particularly from rural, poor, and tribal who are deprived of education due to non-understanding of the language spoken in the classroom could be enrolled in, envisioning goal to achieve 100% gross enrollment ratio in preschools and secondary level by 2030.
Speaker, I would like to quote the words of Nobel laureate C.V. Raman. It goes as, विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में न देने से विज्ञान एक शतम कुलीनता और मकरूहियत भरी गतिविधि बनकर रह जाएगा और आप लोग इस क्षेत्र में आ ही नहीं पाएंगे. Keeping this in mind, the government will be providing incentives to usher in the direction of translating high quality textbooks, including science, into home language. On the Council of Technical Education is creating a database to allow colleges to offer more and more programs in regional language and develop tools to technical context into 11 regional languages. The Commission for Scientific and Technical Terminology is providing publication grants towards publication of university level books in regional language. The National Translation Mission being implemented through the Indian Languages Tool, under which the various books described in universities and colleges will be translated in all languages of the 8th schedule of the Constitution of India. The University Grants Commission also promotes regional language in higher education courses in the country and supports 9 central universities. Under the scheme, Center for Establishment of Endangered Languages in Central University. Madam Speaker, our government sees a reflection of Indian culture in every regional language. We are proud of that and we consider them worth worshipping. We believe we have given importance to every regional language in national education policy because we believe that language is not only a mode of education, it sustains cultural diversity, connects people and aids in understanding. We need language policy for more inclusive and equitable education. Thank you. Question number 103, Ms. Shraddha, please. Honorable Speaker, ma'am, would the Minister of Information and Broadcasting be pleased to answer? A. What is the regulation for OTT platforms? B. Will government implement censorship on OTT? माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अर्श. माननीय अध्यक्षा जी, पूर्व में मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन के समक्ष प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा. माननीय अध्यक्षा जी, पूर्व में ओटीटी को विनियमित अर्थात रेगुलेट करने की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं हुई क्योंकि ओटीटी बहुत सीमित जनसंख्या तक मौजूद था, किंतु वर्तमान भूतकाल से विपरीत है. हम सबको ज्ञात है, कोरोना काल के पश्चात मोबाइल फोन अर्थात स्मार्टफोन जो कि एक जरिया है ओटीटी से जुड़ने का, उसका इस्तेमाल बढ़ चुका है. माननीय अध्यक्षा जी, आज 4 वर्ष का बालक अपनी कक्षाएं उसी स्मार्टफोन पे लगाता है, वहीं 40 वर्ष का व्यक्ति अपना रोजगार उसी स्मार्टफोन पे करता है. माननीय अध्यक्षा जी, आज भारत में 40 से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनका मूल्यांकन वर्ष 2019-20 में 49% तक बढ़ चुका है. इस बात से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बढ़ते हुए स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कारण ओटीटी एक बड़ी जनसंख्या के पास जा चुका है. माननीय अध्यक्षा जी, इन ओटीटी पर दिखाए जाने वाले चलचित्र के पास एक ताकत होती है कि वे किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर हावी होकर उसको भ्रमित कर सके. माननीय अध्यक्षा जी, अगर देश के युवा का दिमाग भ्रमित हुआ तो क्या होगा? देश का युवा देश की नींव होता है. अगर नींव ही कमजोर होगी तो मजबूत इमारत की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार वो इमारत कमजोर कभी नहीं देगी. युवा भ्रमित हुआ तो क्या होता है? हमने देखा है हाल में तांडव जैसे चलचित्र, इनके कारण देश के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले. अगर ओटीटी को भी नियमित अर्थात रेगुलेट नहीं करा गया तो इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हमें समय समय पर देखने को मिलेंगे. भारत की जनता भी अभी यह सोच रही होगी, खुद ही रोए और रो रो कर चुप हो गए, खुद ही रोए और रो रो कर चुप हो गए, यह सोच कर कि आज कोई अपना है वो हमें रोने नहीं देगा और वो अपना हमारी सरकार है, हम सरकार किसी भारतीय को रोने नहीं देगी. हमारी सरकार सांप्रदायिक दंगे, वोट बैंक राजनीति और जाति की राजनीति जैसे निचले स्तर की राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि ऐसा करने से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे प्रश्न उठता है. हमारी सरकार वो प्रश्न कभी उठने नहीं देगी.
इसीलिए माननीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार का यह मानना है कि ओटीटी को विनियमित अर्थात रेगुलेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए हमारी सरकार ने पूर्व में नवंबर 2020 में एक अधिसूचना जारी करी भी थी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्यरत है और जल्द ही एक संपूर्ण अधिनियम लाके ओटीटी को विनियमित अर्थात रेगुलेट करा जाएगा। अन्य अध्यक्ष जी, अब मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष प्रश्न 6 का उत्तर देना चाहूंगा। इस सदन में मौजूद सभी को ज्ञात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर नकारात्मक पहलू की बात करें तो ओटीटी की वजह से उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक दंगे, जो दिमाग पर असर इत्यादि कह सकते हैं। अगर सकारात्मक पहलू की बात करें, माननीय अध्यक्षा जी, ओटीटी की वजह से नए कलाकारों को मंच प्रदान हुआ, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है और अंततः देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था में योगदान हुआ। लेकिन एक तीसरा पहलू जिससे आप भी अनभिज्ञ है, तीसरा पहलू है दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को जोड़कर देश हित में निर्णय लेने का, और वो कार्य हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को जोड़कर देश हित में निर्णय लेने का कार्य करती है। ओटीटी से दंगे होने का डर भी है, युवाओं के दिमाग पर असर होने का डर भी है, लेकिन ओटीटी से होने वाले आर्थिक फायदों को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। इसीलिए हमारी सरकार का मानना है एक बीच का मार्ग अपनाया जाए। बीच का मार्ग यह है ओटीटी को सेंसरशिप के दायरे में लाने का। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को आश्वस्त करवाना चाहता हूं, हमारी सरकार इस पर कार्यरत है और जल्द ही इस पर अधिनियम लाके ओटीटी को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने उत्तर का यही पूर्ण विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। Question number 104, Mr. Ayush, please. Honorable Speaker, ma'am, would the Health Minister be pleased to state A, what has been done regarding the health and wellness centers that you promised? B, what are the statistics of the vaccination drive? C, what has been done regarding the supply of oxygen to meet the COVID crisis? Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. Zorawar, please. Honorable Speaker, ma'am, in a record of 112 days, a total of 2,494 pressure swing absorption oxygen generation plants have been commissioned at government hospitals across 736 districts with a capacity of producing 3,324 tons of medical oxygen per day. This includes 1,183 PSA plants being sanctioned under the PM CARES Fund. Or B, about 75% of the population has been fully vaccinated and 93% of the population have at least one dose vaccinated. Moreover, more than 164.36 crore vaccine doses have been provided to the states and the union territories, and more than 12.43 crore unutilized and balanced vaccine doses are still available with the states and the union territories. And for C, as part of Ayushman Bharat, the existing UPHCs are being strengthened as health and wellness centers, and so far 3,339 HWCs are made operational in urban areas. Mr. Ayush, please. Why were COVID vaccines being sold outside India even when the crisis was at its peak? Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. Zorawar, please. Honorable Speaker, ma'am, I would like to state that India, while supplying vaccines to other nations, already had an adequate amount of stock for the ongoing vaccination drive, in which only 361.94 lakh doses were distributed out of total production. Such goodwill gesture shown by India in the vaccine Matri program has strengthened ties and developed friendly diplomatic relations with other nations. Due to such act, our country has been praised globally. World leaders have thanked India for its help and support at these dreadful times at UNGA session also. Thank you. Question number 105, Ms. Shruti, please. Mr. Speaker, ma'am, would the Finance Minister be pleased to state A, what
is the government's strategy in dealing with the prevailing hike in fuel prices in the country? B. How does the government plan to tackle the increasing rate of inflation, a consequence of the hike in fuel prices? Honorable Minister of Finance, Ms. Zoya, please. Honorable Speaker, ma'am, it is my duty to let the opposition know that we are trying our best to bring down the petrol prices. Our team is working day and night, and it is absurdity to claim that we haven't done anything. The opposition needs to understand that the petrol prices are determined by the international prices of crude oil and the taxes levied by the center and the state. We all know that there has been global instability in the petrol prices due to international conflicts. So controlling that part is not in our hands. We too are waiting for these unlikely global situations to calm down. And then about the taxes charged. The excise duty that the central government charges has been reduced. 8 rupees reduced in petrol and 6 rupees reduced in diesel. But the value added tax or the VAT that the state government has to charge has been high in many states, especially where our government is not residing. So the state government needs to lower these charges. An even bigger issue that we are facing currently is the issue of repayment of oil bonds issued by the previous ruling government. To save themselves from the criticism that they were facing at that time due to high petrol prices, they issued oil bonds. But the burden of repayment of almost 9,000 crore rupees falls on us. So we presently cannot reduce the petrol prices. B. Crude oil is a major economic input, so a rise in oil prices contributes to inflation, which measures the overall rate of price increases across the economy. So we are hoping that with the decrease in oil prices, the inflation will too reduce automatically. Ms. Shruti, please. माननीय अध्यक्षा जी, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 77 रुपए पर आ पहुंचा है? आखिर इस अवमूल्यन का कारण क्या है? रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? Honorable Minister of Finance, Ms. Zoya, please. Honorable Speaker, ma'am, we are well aware of the fact that the rupee has devaluated in comparison to the US dollar. $1 is now more than 70 rupees. The main reason for this devaluation is the sudden increase in gold imports, which has burdened our current account deficit. But what I fail to understand is that why does the opposition think that we can't handle India's economy? That we are a bunch of fools? Even though we have managed to make India the world's fastest growing economy, that too at double the rates predicted. But to scratch the opposition's itch, let me mention few of the measures that we have taken with RBI. Now NRIs can incorporate one-person companies with no restriction on paid-up capitals, hence allowing capital to flow into our economy. Indian borrowers have been encouraged to issue rupee-dominated masala bonds to facilitate the inflow of dollars and de-risk the economy from fluctuations in the exchange rate. And to further push Indian corporates, we have made these bonds tax-free. The RBI has also conducted a $5 billion rupee swap auction as a part of its liquidity management to allow the inflow of dollars and suck out the rupee, thus reducing rupee liquidity and strengthening our currency. So I hope that the opposition is satisfied because we are confident that these steps will work and our currency will be strengthened. Ms. Soumya, please. Speaker, madam, I would like to ask the finance minister that the government is exercising its economic policy. Why is it that we tackle the problem of that? Honorable Minister of Finance, Ms. Zoya, please. Honorable Speaker, ma'am, I would like to show the data to the opposition to answer to their accusations. The Center for Monitoring India's Economy monthly time series data revealed that in February 2022, the overall... थोड़ा फाइलों से बाहर आके बात करिए मैडम. Kindly maintain the decorum of the House. The Center for Monitoring India's Economy monthly time series data revealed that the overall unemployment rate in February 2022 was 8.10%, which reduced to 7.6% in March. And on 2nd April, the ratio further dropped to 7.5%, with urban unemployment at 8.5 and rural at 7.1. So I hope that the opposition is satisfied because
They are wrong about the current unemployment scenario as it is indeed improving. Now the question hour is over. No more supplementary questions, please. Let's take up the matters of public interest. Ms. Shagun will raise the issue of women's safety in India. Ms. Shagun, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। आज से 75 साल पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये देश पूर्ण रूप से उस दिन आजाद होगा जिस दिन महिलाएं बिना किसी डर के रात को बाहर निकल पाएंगी। मैं खुद एक औरत हूं और मुझे बहुत शर्म आती है ये कहते हुए और बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि भारत अभी तक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से आजाद नहीं हुआ है। भारत में बलात्कार महिलाओं के खिलाफ होने वाला चौथा सबसे आम अपराध है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है। एक 6 महीने की छोटी बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरत तक इसकी शिकार बन रही है। मेरी सरकार से विनती है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और बढ़ते हुए रेप के मामलों पर हाथ रखकर न बैठी रहे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े नारे देने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपनी बेटियों की सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। Ms. Vanshika will now raise the issue of internet connectivity in Kashmir Valley. Ms. Vanshika, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त 2019 धारा 370 हटाने से एक दिन पहले कश्मीर में सभी इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना किसी को बताए, बिना किसी चेतावनी के। और जब सरकार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने हमारे हाथ में सुरक्षा कारणों की एक खाली थाल थमा दी। फिर 5 फरवरी 2021 को फिर सबके फोन बजे और पता चला कि हमारी अंधी सरकार ने आखिरकार अपनी दया दृष्टि फिर उस क्षेत्र पर डाली है और इंटरनेट सुविधाएं पुनः स्थापित करी। पर जिस कथा को हमने सुंदरकांड समझा था वह तो पूरी की पूरी रामायण ही थी। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक इस इंटरनेट प्रतिबंध के कारण कश्मीर के लोगों को 18,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन आंकड़ों को सियासी रूप देने का हमारी प्रगतिशील सरकार की आदत बहुत पुरानी है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज हमारा देश भारत इंटरनेट बैन के मामलों में विश्व गुरु बन गया है। हाँ, उस देश की वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, पर मैं उस देश की भी वासी हूँ जहाँ जनता खौफ में रहती है, जहाँ इंसान आवाज उठाता है तभी बोल ना पाता है। इस साल हमारी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव तो बना रही है, पर अब लगने लगा है कि शायद इस अमृत मंथन के लिए स्वयं ईश्वर को ही धरती पर उतरना पड़े। Mr. Aryan will now raise the issue of student migration with relation to Ukraine war crisis. Mr. Aryan, please. महोदया जी, आज मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे पहलू की जिसने भारतीय चिकित्सा प्रणाली की एक खराब छवि पूरे विश्व के सामने ला खड़ी की है। जी हाँ, ये वही चिकित्सा प्रणाली है जिसने कोरोना महामारी का तो डट के सामना किया, लेकिन यही चिकित्सा प्रणाली अपने ही छात्रों को देश में चिकित्सक शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था न दे सकी। परिणाम स्वरूप जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे बाहरी देशों में गए, उन्हें उस विस्फोटक माहौल के बीच जूझना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि हम शुक्रगुजार हैं ईश्वर के और हमारी सरकार के कि वे सभी छात्र जिनकी संख्या लगभग 18,000 थी, वे सकुशल भारत को लौट आए हैं। लेकिन कुछ प्रश्न अब भी संदेहनीय हैं। ये छात्र जिनकी पढ़ाई बीच मझधार में रह चुकी है, आखिर उनके भविष्य का क्या? आखिर क्या कारण था कि इन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने देश से बाहर जाना पड़ा? क्यों हमारे सरकारी संस्थान इन सभी छात्रों को देश में ही पूर्ण चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था देने में असमर्थ है? अतः माननीय महोदया जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित करते हुए यही पूछना चाहूंगा कि क्या है हमारा और सरकार का इस दिशा में अगला कदम? धन्यवाद। Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Ms. Rupali, please. Honorable Speaker Madam, I shall Honorable Speaker Madam, there has been a breach of privilege by some members of civil society.
According to the reports submitted by media personnel, some members of civil society found engaging in vulgar and improper behavior. Therefore, I request you to allow me to raise this important issue of breach of privilege under Parliamentary Act 188. Mr. Hamza, have you given a notice of it earlier? You may give due notice and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I've already given a notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. It is time for the papers to be laid on the table. Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Mr. Pali, please. Honorable Speaker, Madam, with your due permission, I rise to lay on the table mention against funding and forward in today's revised list of business. A copy in English and Hindi on the following statement showing the actions taken by the government on the assurances, promises given by the ministers during various sessions of the 15th Parliament has been submitted. Honorable Minister of Road, Transport and Highways, Ms. Vishakha, please. Secretary General to report the message from the Upper Chamber of Youth Parliament. Speaker, Madam, I have to report the following message from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provision of values of procedure and conduct of business in the Upper Chamber of the Youth Parliament, I am a copy of the new agriculture policy 2022, which has been passed by the Upper Chamber of Parliament, as its sitting was held on February 2022. Secretary General to lay on the table a copy of the new Agricultural Policy 2022 as passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament. Speaker, Madam, I lay on the table of the House a copy of the new Agriculture Policy 2022, the Upper Chamber. Honorable members, I am pleased to make an announcement on behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to the parliamentary delegation from Japan called the Majlis, led by His Excellency Mr. Sonam, Prime Minister of Japan. Mr. Sajanthong, Speaker of the Japanese Parliament. Ms. Divya, Deputy Speaker of the Japanese Parliament. They are on a visit to India as our honored guests. They are now seated in the special box. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived here on Sunday, 29th of May at 8 a.m. They have already visited the Taj Mahal. We wish you all a very happy and fruitful stay in our country, and we also convey our warm wishes to the friendly people of Japan. Now let us take up the calling attention motion. Mr. Parakram, please call the attention of the Minister. माननीय अध्यक्ष महोदया, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे माननीय सांसदों के सामने एक ऐसे मुद्दे का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया जिससे न केवल देश का किसान अपितु देश की 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या दुखी है, संकटग्रस्त है। यह मुद्दा है देश के अन्नदाता का, यह मुद्दा है उसकी बढ़ती आत्महत्या का, और यह मुद्दा है देश की 70% जनसंख्या का जो कृषि कर्म से जुड़ी है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान पीयूष। Honorable Speaker, Madam, I feel obliged to be able to speak in front of this House, and I'd like to thank the Honorable Member of the Opposition for calling my attention. Our government has been bringing a policy in this technological reforms which help increase the production of the crops and help the farmers to carve out a niche for themselves so they don't have to live hand to mouth. Madam Speaker, farmers have always been the backbone of the country, and our government is striving to strengthen this backbone of the country through innovative and solid measures. For instance, a Krishi Vikas Yojana has been launched to motivate groups of farmers to take up organic agriculture. A unique scheme has been seen in the northeastern region to promote organic agriculture and the produce of the organic produce. Soil health cards have been introduced to enhance productivity of specific crops sustainably and will be issued to all 14 crore holdings in the coming time. 248 lakh samples are to be analyzed in a 3-year cycle. Madam Speaker, the list does not end here. E-NAM, that is E-National Agriculture Market, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, National Mission for Sustainable Agriculture, etc. are just some of the many policies that our government has put forward for the betterment of the farmers. So the opposition cannot say that our government hasn't been doing anything.
Shrikant Parakram. अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय कृषि मंत्री जी की बात सुन रहा था, जिससे मुझे एक मुहावरा याद आ गया, छोटा चना बाजे घना। इनकी सरकार की ऐसी ही खोखली किसान हितैषी नीतियों से ही तो हमारे देश के अन्नदाता की यह दुर्दशा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि प्रधान का अर्थ है वो व्यवस्था जिसके केंद्र में हो कृषि और जिसका नायक हो कृषक। और इसी नायक के कारण कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी देश दुनिया की डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच कृषि क्षेत्र की विकास दर सुदृढ़ रही। इस सरकार ने अच्छे दिनों के नारे तो खूब लगाए, पर वास्तव में निर्लज्जता और कार्यहीनता का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने किसानों के गाल पर महंगाई और कर्ज का ऐसा तमाचा मारा जिससे वो सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। और ऐसी स्थिति में केवल आत्महत्या कर लेना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। यह काले कृषि कानून लाने वाली सरकार जो बड़ी सरलता से किसानों की आत्मसम्मान और व्यवसायिक गरिमा का सौदा बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ कर डालती है, वो क्या समझेगी कि कैसे इस कली काल में हमारे देश का अन्नदाता अपने प्राण त्यागने पर विवश है। कभी आंदोलन करने को लाचार किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बुलाया जाता है, तो कभी मंत्रियों के बेटे उन्हें अपनी महंगी गाड़ी के पहियों के नीचे रौंद देते हैं। और ऐसे ही सरकारी संवेदनहीनता से हाल ही में हुए दिल्ली एनसीआर के किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान मृत्यु काल का ग्रास बन गए। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में भारत में हर 30 मिनट, ध्यान दीजिए, हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। महाराष्ट्र 12 वर्षों से लगातार किसान आत्महत्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। और किसान आत्महत्या का यह सिलसिला महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा से होते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर तक पहुंच गया है। और किसान आत्महत्या से पीड़ित परिवारों को मदद देना तो दूर, इस सरकार ने तो किसान आत्महत्या का आंकड़ा देना ही बंद कर दिया है। तो ये कोई 500,000 के नोट नहीं जो लोग इतनी सरलता से भूल जाएं। ये हमारे देश का कटु सत्य है। और ऐसे हालात में भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का चुनावी जुमला देकर सत्ता में आई है सरकार इसे लागू करना तक भूल चुकी है। और चूंकि कृषि संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य एवं केंद्र सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर टाल देती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही किसानों की समस्या का हल निकल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। महोदया जी, यही वो संदेश है जो किसानों के आत्मसम्मान को चूर चूर करते हैं और बताते हैं कि सरकारी प्रणाली और व्यवस्था उनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने मन की बात तो बार बार कही है, लेकिन क्या आपने तपती धूप में खेत जोतते उस किसान के मन की बात समझी? यदि आप एक बार, मात्र एक बार आमजन के मन की बात समझ लेते तो आपको शायद किसान की पीड़ा समझ में आ जाती। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि किसी ने सही कहा है कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। दरख्तों, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेत की मेड़ पर बैठा है, बस उसी की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। हे बादलों, अब तो तरस खाओ उस भूखे किसान पर। किसी की जमीन गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। किसी की जमीन गिरवी है तो लगान। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या कर रही है सरकार उस किसान के लिए जो कर्ज में डूबा है? क्या है कोई ऐसी नीति सरकार के पास जो हर साल हजारों आत्महत्या कर रहे उन किसानों को ऐसा ना करने दे और उन्हें इस दुष्चक्र से निकाल पाए? धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय प्रधानमंत्री जी। I will not stand here and emotional speeches. I will not resort to this theatrics because I do not have to. For I have the people and the truth on my side. Something that the opposition here clearly lacks. I commend the Honorable Minister of Agriculture for countering these lies and propaganda being spread by the honorable members of the opposition by presenting the true facts of the matter. Honorable Speaker, Madam, the opposition need not remind us again and again that India is an agricultural-based economy because it is these farmers that dismissed them from power and elected us to serve their cause and work towards their benefit. As the Annadatas of my father, I apologize for the keep on working towards your benefit as we always have. Towards the honorable members of the opposition, I invite you to engage in productive and fruitful discussion. Please
please do not let your political ambitions hinder you from working towards the welfare of our farmers. Thank you and Jai Hind. नेता प्रतिपक्ष श्रीमान ऋतिक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों से अपनी शुरुआत करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे सम्मानित साथी पराक्रम अग्रवाल ने किसानों से संबंधित इस विषय पर अपनी महत्वपूर्ण बात रखी, मैं उसी को आगे बढ़ाकर अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसान कौन है? किसान देश का अन्नदाता है, जो देश के करोड़ों करोड़ गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के पेट को भरने का काम करता है। लेकिन आज जो सत्ता सरकार विराजमान है, वो किसानों के विपरीत नीतियां बनाने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार तो सत्ता के मद में मदमस्त होकर कुछ भी कानून इस देश की जनता के ऊपर थोपने का काम करती है, जिसका ताजा उदाहरण ये 3 किसान कानून सरकार बार बार कहती है किसानों के हित में लाए गए। हम कहना चाहेंगे 3 किसान कानून नहीं, 3 किसान काले कानून है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली से चलने वाला देश है, जहां पे चर्चा परिचर्चा बहस के बाद सदन से कोई भी बिल विधेयक का रूप लेता है। लेकिन ये सरकार चोर दरवाजे से कोई भी अध्यादेश लाकर देश के ऊपर कोई भी कानून थोपने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस देश की 60 से 65% जनसंख्या आबादी कृषि पर निर्भर हो, और अगर उसी के विपरीत सरकार नीतियां लाने का काम करे, वो देश कैसे अग्रसरित होगा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? माननीय अध्यक्ष जी, यही वो सरकार है जो 2014 से लेकर आज तक ढोल पीट कर कहती थी कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, 2022 आ गया। मंत्री जी बताएं, किस किसान की आय दोगुनी हुई? किसी एक किसान का नाम भी बताएं। इनके कृषि मंत्रालय के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि किसानों की आय लगातार गिरती जा रही है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो देश 1970 में हरित क्रांति के लिए जाना गया है, वो देश आज किसान आत्महत्याओं के लिए जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई होगी? इसीलिए हुई होगी क्योंकि इस सरकार ने ऐसी नीतियां और कानून इस देश में थोपने के काम करे होंगे, जिसने देश के किसानों के हालात को बदतर करने का काम किया होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी को सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे कि किसानों के हित में बड़ी अच्छी नीतियां चाहिए। मैं उसका एक अच्छा सा उदाहरण भी आपके सामने देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यूरिया का कट्टा एक जमाने में 50 किलो का मिला करता था। जैसे ही माननीय महोदय जी की सरकार आई, वो 50 किलो का कट्टा 45 का हो गया, और सोने पे सुहागा यह हुआ कि 200 रुपए उसके रेट भी बढ़ गए। ये तो किसान हितैषी हमारी सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, और भी काफी कुछ कहा गया, लेकिन ये सरकार किसान हितैषी नहीं, उद्योगपति प्रेमी है। क्योंकि जब हमारे किसान भाई आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो यही सरकार के नुमाइंदे उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइना के एजेंट कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। फिर भी हमारे किसान भाई डट कर इस सरकार का मुकाबला करा, और 3 किसान काले कानून जो इन्होंने थोपने के काम किए थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जो उदाहरण मध्य प्रदेश के मंदसौर का हम सभी के सामने है। इस सरकार ने कैसी अपनी कुनीतियों से हमारे मंदसौर के 15 प्रधान किसान भाइयों को गोली से छलनी करने का काम किया। वो क्या कर रहे थे? वो चांद नहीं मांग रहे थे, अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी इस सरकार की कुनीतियों के कारण उन सभी किसानों को अपनी शहीदी देनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि समय का अभाव है, तो अपनी आखिरी बात को भी रखना चाहूंगा जो एमएसपी से संबंधित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अध्यक्ष जी, आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि आज जो चावल, दाल, गेहूं कोई भी हो, उन सभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता है जो सरकार तय करती है। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, एमएसपी से संबंधित एक कानून लाए और उस कानून में सभी प्रोविजंस को जोड़ने का काम करे कि अगर किसान को एमएसपी की दर पर नहीं मिलता है, उसका जो भी रेट सरकार ने तय किया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है ये 300 पार की सरकार, 300 पार की सरकार, तो मैं इनको एक शायरी से इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान पीयूष। Honorable Speaker, Madam, I'd like to take this opportunity to iterate that
This House of People deserves something from all of us. It deserves responsible deliberations, statistical viewpoints, structured and to-the-point speeches. But unfortunately, since the inception of this session in the morning, all that my worthy opponents have been doing is including unnecessary poetry, doing emotional theatrics, and making unfounded claims towards the government, and I urge them to refrain from that. Madam Speaker, following the recent unseasonal rains, our government has announced that farmers would be eligible for an input subsidy if 33% or more of crop were damaged. The opposition should note this, that previously farmers were eligible for this subsidy only if 50% or more of the substantial crop was damaged. Sir, do you have something to answer that? Also, my worthy opposition members made a lot of allegations in their speeches, and I'd like to address them one by one. In their speech, my learned opposition member mentioned something about the Kisan Andolan. Everything that happened, if kept apart for a second, I'd like to remind my worthy opposition that in its manifesto in 2019, it mentioned that, and I quote, the opposition party will repeal the Agriculture Produce Market Committees Act and make the trade in agriculture produce, including export and interstate trade, free from all restrictions, unquote. Sir, do you remember that? Madam Speaker, had the farm bills sustained, then as today, as the wheat prices surged due to the Russo-Ukraine conflict, then the Indian farmer would have made the fortune even despite the unfortunate ban which we are trying to lift up. Sir, the farm laws were beneficial for the farmers, no two ways about it, and you know that. It was your incitement that did not allow the farmers to take the benefit from it, sir. It is your fault. Honorable member of opposition mentioned working hand in hand with the government and walking Sadak Se Sadan with the farmers. Sir, let me remind you, it is your rule state that are never supporting the government with regards to the policies that we bring forward for the betterment of the farmers, sir. And you talk about unemployment. I think who's awfully unemployed in this country are the princes of all the political dynasties, sir. Do you have an answer to that? Now, on our PM's visits to the world, sir, it is effortless to criticize, but very hard to make a country a world power, which our honorable PM has done, sir. Our government's strong and principled stand at WTO negotiations secured Indian farmers long-term interest at concessional rates while providing food security. Moreover, the Indo-Israel Village of Excellence is a new concept that aims to promote an increase in net income and better the livelihood of the individual farmer by transforming traditional farms into modern intensive farms based on IIP standards. A large-scale and complete value chain approach with economic sustainability will be tailored to local conditions, embedded with Israeli novel technologies and methodologies. So, Madam Speaker, as I said in the very start, our responsible government looks after the annadatas of the country, no two ways about it. And all the provisions that I mentioned earlier prove that without the need of any unnecessary poetries, emotional theatrics, but with a strong and statistical fundamental basis. Thank you so much. Now it is time for the legislative business. Honorable Minister of Ayush to introduce the bill. Honorable Speaker, Madam, I beg to move from a leave to introduce an amendment in Indian Medicine Central Council Amendment Bill 2022. Now the question is that leave to be granted to introduce a bill further to amend the Indian Medicine Central Council Bill 2016 further to Indian Medicine Central Council Amendment Bill 2022. Those who are in favor will please say aye. Those who are against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Honorable Speaker, Madam, I hereby introduce the bill. Now the House will take up consideration of National Law Universities Bill 2022. Honorable Minister of Law and Justice, Mr. Tanishq, to introduce the bill. Thank you, Honorable Speaker, Madam. The National Law Universities are the premier law schools of the country, but still, they lack the recognition that they deserve. The bill that I'm about to introduce aims at all the disparities that these law schools have been facing so far. The bill proposes to centralize the National Law University, bring in more efficient ways of administration. Honorable Speaker, Madam, the salient features of the bill are first, INI. INI stands for Institute of National Importance. It means to confer on a public higher institution of national importance. But see the dilemma. Vidambana Dikshiya, no national law university is
stand as high. Why is it that we have failed to consider legal education in India as something of national importance? It is our collective failure. कल इन्हीं संस्थानों से देश का बड़ा वकील, दूरदर्शी न्यायाधीश, अफसर, and some may also go on to occupy a luxurious bungalow, looking beyond being a typical politician and being a statesman. Madam Speaker, moving on to salient feature number 2, that is building up the record. Honorable Speaker, Madam, a central university is in itself a big organization with much repo across the states. Some of the central universities are IIT Delhi, IIT Bombay, Banaras Hindu University located in Varanasi, and their reputation is well known to all of us. Once NLUs are brought under INI, their reputation will take a lead. Moving on to salient feature number 3, that is centralization. Honorable Speaker, Madam, NLUs, national law universities are governed by their respective states, which in itself resolves the significance of the very word nationalism. Honorable Speaker, Madam, by this bill, I propose to centralize the national law universities. There are 46 clauses to the bill. I have provided a copy of the bill to all the honorable members of the House. Now, I would like the Honorable Speaker, Madam, to take the bill into consideration. Motion moved that the National Law Universities Bill 2022 is taken into consideration. Ms. Chandan, please. Mr. Speaker, ma'am, I want to highlight the loopholes in the National Law Universities Bill introduced by the government. As we know, education is an area with maximum decentralization. It is a well-followed principle in advanced countries as well. Why is the government enforcing the centralization of national law universities, despite knowing the fact that centralization of educational institutes only commercializes the education along with hurting the well-established spirit of federalism in India? Madam Speaker, since 1988, first national law university named LSIU Bangalore was commenced. State government is maintaining the administration of NLUs. LSIU Bangalore, which is known as the best law school of Asia, is developed under the aegis of state government only. State governments are also looking into the concerns raised by students of NLUs and have also solved most of their issues. So we want to know what measures this government is planning to take to provide complaint mechanism in NLUs. Ms. Chetna, please. Speaker, Madam, law is the spirit that keeps justice alive. In fact, the very core function of this esteemed institution that we are gathered here today is the formulation of laws. In this context, Madam Speaker, the issue of centralization of national law universities is of grave importance as it affects the future of our next generation lawyers, lawmakers, and even parliamentarians. The honorable opposition has quite vehemently called on the government on its proposition, calling it an attack on federalism and an open door for commercialization of education. Madam Speaker, let me apprise the House of the conditions of the sanctum sanctorum of legal education in our country. The LLUs today lie victim to inefficient and lethargic administration. The students required I would say, are learning about rules and laws not from their professors in classrooms, but when they're fighting against their basic rights and the lack of basic facilities such as inadequate infrastructure and hygienic accommodation and facilities, Honorable Speaker, Madam. In fact, the label national is quite conveniently used for these universities. However, there is no uniformity from academic standards to even the academic syllabi that is being followed in this university. Madam, it would be a shameful situation if a young, passionate student who wants to explore the glorious field of law is unable to secure a systematic legal education because of reasons like exorbitantly high academic fee structures and an indifferent attitude towards the student community. So the basic and the main reason behind these problems is the lack of centralized funding and the lack of a uniform academic standard. And Madam Speaker, the best solution to tackle all these problems is the centralization of national law universities in our country. Moving on to the next query raised by the honorable opposition, it's quite ironic that the opposition, which is entrusted with the responsibility of dissent and criticism in our country, is here today admonishing the student community for practicing their basic right to protest against injustice. Madam Speaker, in this issue, the government has a quite clear stance. The government encourages the positive role played by the student unions in strengthening democracy through the process of debate, deliberation, and lawful protest. In fact, instead of setting up a complaint
mechanism, the government would like to establish an effective grievance redressal mechanism that shall be there to listen and solve the needs of the student community, Madam Speaker. Madam Speaker, the foremost role of a student is to gather knowledge and wisdom, not to lose their precious time in fighting for their basic rights. In this context, Madam Speaker, let us help these students of law to fulfill their roles with utmost time and attention by giving our assent to the National Law Universities Bill 2022. That's all, Madam Speaker. Honorable Prime Minister, please. Honorable Madam Speaker, I would like to congratulate and commend my dear friend and the Minister of Law for showing such foresightedness in drafting a bill that will surely revolutionize legal education in India. Our national law universities are a source of pride, led by devoted vice chancellors, dedicated academicians, and budding aspiring law students. The Indian imagination is no longer limited to engineering or medicine. So why should our laws not reflect the same? If this bill were to pass, which it should, our NLUs will truly become national law universities in their character and in their vision. Thank you. Honorable Leader of Opposition, please. माननीय अध्यक्षा जी, आज जो ये विधेयक हमारे सम्मानित साथी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, क्योंकि शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है और जो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ये राज्यों के द्वारा पारित, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक से ही अस्तित्व में आते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्षा जी, शिक्षा के विषय में अगर कोई भी ऐसे निर्णय इस तरह के विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि 1 या 2 दफे राज्यों से भी चर्चा परिचर्चा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा सरकार से, माननीय कानून मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि इस विषय में एक समिति का गठन करें और उस समिति में राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधि हो और फिर किसी विचार विमर्श के बाद ऐसे विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister of Law and Justice, Mr. Tanishq, please. विंस्टन चर्चिल का नाम भारतवर्ष के इतिहास में बड़े गर्व से नहीं लिया जाएगा, पर एक बात माननी होगी कि वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं कहा था कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई नजर आती है, पर एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर नजर आता है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं कानून के पेशे से ताल्लुक रखता हूँ। आज अगर मैं इस देश के छात्रों के साथ न्याय कर सकूंगा तो मैं मानूंगा कि मैंने मुकदमा जीत लिया है। देश के चुनिंदा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आज इस बिल के पारित होने से एक नई ऊंचाई छुएंगे। देश में कानून की पढ़ाई की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को एक विशेष रूप से ध्यान देने की ओर प्रेरित करता है। इस बिल के पारित होने से हर राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मैडम स्पीकर, 2000 जब ये संस्था शुरू हुआ था तब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए थे। तब से हर राज्य में, लगभग हर राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं हमारे। और परंतु कुछ कमी रही जिसके चलते ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हमारे कानून के छात्रों का भरोसा नहीं जीत पाए, जिसके चलते हमारे कानून के छात्र विदेश पढ़ाई करने जाते थे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब ये बिल जमीन पर अपना असर दिखाएगा तो विदेश जैसी अत्याधुनिक पढ़ाई हमारे देश के छात्र हमारे देश में ही रहकर कर सकेंगे। सेंट्रलाइजेशन होने से फीस भी कम होगी और राज्यों की सीमाएं भी देंगी और पूर्व में पढ़ाई कर रहा बच्चा पश्चिम में बैठे बच्चे से संवाद कर सकेगा। इस देश की विविधता उस छात्र को ज्ञात होगी। ना ही सिर्फ राज्यों की सीमाएं, परंतु इस बिल के पारित होने से विदेश में भी संवाद मुमकिन हो सकेगा। अतः मैं सभी माननीय सांसदों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित होने में अपना सहयोग दें और इस देश के कानून के छात्रों का न्याय करें। Now the question is that National Law Universities Bill 2022 thereto be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now clause by clause consideration. Now the question is that clause 2 to 46 stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Honorable Minister of Law and Justice, Mr. Tanish, please. Speaker, Madam, I move the bill into consideration. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will please say aye. Those who are against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now the House will take up the private member's resolution. Ms. Mansi, to move the resolution, please. Honorable Speaker, ma'am, I move the following resolution. This House recommends that the government should take steps to impose reservation for LGBTQ plus community in both education and employment sector. Speaker, ma'am, I believe the efforts of a single member of parliament could soon ensure the transgender community reservation in educational institutions and government jobs. And I would like to add, as that MP today, reservation should come first for the third gender. Does the House know exactly how much of an Indian population consists of LGBTQ plus community? Certainly not. Since there's no official census yet conducted by the government, and even if unofficially conducted by human rights activists, most do not admit that they belong to the community due to social stigma. Still, LGBTQ plus do form 8 to 10% of Indian population, that is approximately 130 million. But reservation for them isn't even thought of. The government wanted LGBTQ plus to be included in OBC, but that's not how the community should be recognized. It's like including male in SC and female in ST. I applaud Karnataka government for imposing 1% reservation for LGBTQ plus in all categories of employment. It is terrible that a section of India is by birth vulnerable to human trafficking. This shows how miserably the state has failed as a protector of individual rights and autonomy. It is our mindset that has imprisoned them, and it will require freeing up our minds to free them. For those who aren't yet sure of the reasoning behind giving reservation, let me tell you. They have been facing socio-economic discrimination. Literacy levels are low, no viable income, multiple health issues, and difficulty in acquiring a job. Even a column in the application form for gender identity of LGBTQ plus is not provided. And madam, for those who argue that jobs should be based on merits, efficiency, qualifications, even if so is done, pay grade is exceptionally low. The opposition wants to know why are dialogues not held? Why is it that providing them with better access to basic facilities is still considered a favor? With the deep-rooted prejudices thwarting any kind of progress, third gender needs affirmative action from the state. We need to sit back and question why is it that every time a law is made for trans people, protests become necessary for them to get their needs addressed. I would like to remind the government, it's not a favor, it's a right. Mr. Vihan, please. माननीय सभापति महोदया एवं समूचे सदन को मेरी तरफ से घड़ी खम्मा। आज इस सदन में बात होगी इतिहास की, ऐतिहासिक शोषण और भेदभाव की। शोषण एक ऐसे वर्ग का, ऐसे समुदाय का जो हर तरफ से पिछड़ा है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सामाजिक स्तर हो। यह समुदाय है LGBTQ यानी समलैंगिक एवं परलैंगिक समुदाय। हमारा देश, हमारा संविधान और ये सदन भी हम सभी का यह उद्देश्य है कि हमारा भारत एक समानता का प्रतीक देश बने। मगर जब इसी देश में आबादी के इतने बड़े तबके को उचित अधिकार नहीं मिलते, जब उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो ये समाज में कहीं ना कहीं हो रहे अन्याय को दिखाता है। ये बड़े दुख की बात है कि सन 2022 में भी जब उच्चतम न्यायालय के अनेक फैसले जैसे नालसा बनाम भारत राज्य और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत राज्य LGBTQ समुदाय के पक्ष में है, फिर भी आए दिन इन लोगों के साथ बदसलूकी और भेदभाव की खबरें आती रहती है।
एलजीबीटीक्यू समुदाय की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है, मगर हमारी सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती। ऐसे गंभीर विषय पर सरकार की चुप्पी और कार्यहीनता काफी निंदनीय है। हमारे संविधान के अनुसार आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है जो समाज के पिछड़े वर्ग को दिया जाता है, जिससे उनका उद्धार हो सके। तो मेरा ये सवाल है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय जो वास्तव में इतना पिछड़ा है, उसे सरकार द्वारा अब तक यह आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? यह आरक्षण उन्हें समाज में एक ऊंची आवाज प्रदान करेगा और उनकी सामाजिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज इस सदन का विपक्ष अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करेगा। मेरी इस सदन से गुजारिश है कि हमारे साथी सांसद द्वारा लाए गए विधेयक पर यह सदन विचार करे और इसे पास करा के एलजीबीटीक्यू समुदाय को उनका अधिकार और उनका सम्मान दिलवाए। धन्यवाद। Miss Asta, please. Members of the House that of LGBT introduced in this House very soon. Miss Mansi, please. I'm grateful to the honorable members for lending support to my resolution. In view of the assurance provided by the honorable minister, and since a law will soon be enacted to deal with this menace, I may be allowed to withdraw the resolution. Has the honorable member leave of the House to withdraw her resolution? Yes, ma'am. Motion moved that the bill is withdrawn. Those who are in favor will please say aye. Those who are against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill stands withdrawn. Now the House is adjourned to meet again at national rounds in New Delhi. Thank you, dear students, for very beautifully showcasing the proceedings of Indian LOK Sabha and for raising very important issues. I have full faith that you all will play a constructive role in the nation building. Now I request our chief guest of the day, Mr. Virender Kashyap ji, to say a few words to encourage our students and to give his observation about the youth parliament session, the points or areas where we can make improvement for future performance. Sir, please. आज इस 16वें नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ Prime Minister Mohoday, Ministers, Mr. Member of this is Leader of Opposition, Deputy Speaker, and members of the House. And along with this, today there is present our Vice Chancellor, Dr. Professor Mr. Jaswalji, Registrar Dr. Rangaji, one of the judges, Professor Dr. Sanjay Sandhuji, Dr. B. मोमन जी, और मेरे साथ आए हैं विशेष तौर से एचपी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, श्री संगरोली जी जो रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, रोशन ठाकुर जी यहाँ एडजॉइनिंग पंचायत के एक्स प्रधान सुरेंद्र ठाकुर जी,
और आज यहाँ पर हमारे मीडिया की गैलरी और विशेष आमंत्रित जापान का जो एक हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पर बैठा है, मुझे खुशी है और मुझे याद भी आ रहा है कि जब मैं 2009 में I was elected to the lower house, that is Lok Sabha, and you all are sitting here as a member of lower house, Lok Sabha. बहुत अच्छा लगा कि जिस रूप में अध्यक्ष महोदया ने कार्रवाई का संचालन किया, अगर मुझे कहना है कि हु इज द बेस्ट लीडर ऑफ द डे, तो मैं उसमें स्पीकर महोदया को कहूंगा। लग नहीं रहा था तो ये होप पार्लियामेंट है, कोई ऐसा जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्लियामेंट का इसमें रोल अदा कर रहे हैं। मुझे लगा कि वी वर सिटिंग इन 2009 because I was elected that time. I was first elected for the first time, और मुझे खुशी हुई कि एक लाल टोपी वाला मेंबर यहाँ पर बैठा था। तो मुझे याद आया, I was only the person in the house who used to wear this red cap of Himachal Pradesh. ये कैप में हाउस में लगा के जाता था। कारण क्या था? कारण ये था कि एक आइडेंटिफिकेशन होती, एक इतना बड़ा हाउस जिसमें 500 से ऊपर 543-42 के करीब जो है वो सदस्य हो। जो हिमाचल एक छोटा सा स्टेट, फ्रॉम वेयर वी आर 4 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उसमें कहाँ पता लगता है समुद्र में 2-3, यानी थोड़ा सा, कहाँ इतना बड़ा समुद्र है और एक छोटी सी कहीं पानी का छोटा सा तालाब कुआं हो, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कहाँ होती। तो मैंने इसलिए कहा कि हिमाचल की आइडेंटिटी इस हाउस में हो, तो वो एक टोपी के नजर से हमने उसको रखा। और मुझे आपको बताते हुए कि बिकॉज यू ऑल आर आवर स्टूडेंट्स, कल का भविष्य है, जैसे यहाँ पर कह भी रहे थे कि आप में से कोई हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। मोस्ट ऑफ यू विल क्वालिफाई फॉर IJS एंड देन यू विल गो फॉर जुडिशरी। बहुत से अच्छे लॉयर आपके बीच से निकलेंगे, और लॉयर नहीं तो फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में आप ही लोग जाएंगे। और अबव ऑल द पर्सन हु नोज द लॉ, मेरा ये मानना है कि ही इज द बेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। वो कभी क्राइम करता नहीं, और क्राइम कोई करने वाला हो तो उसको रोकने का प्रयास करता। ही विल बी द बेस्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, एक ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी, वो आप में से बने। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहली बार बने। एंड जैसे यहाँ पर आप बता रही थी, मेरा जब आप बायोडाटा पढ़ रहे थे, आपने ये नहीं बताया कि कितनी बार जीते कितनी बार हारे, एक ही बार बताया कि 2 बार जीते। और मैं इस हाउस को बता रहा हूं, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स हु आर सिटिंग बिहाइंड मी, I lost election 8 times. Can you imagine? 8 बार जो व्यक्ति लगातार 1979, when I left the job as a lecturer in physics from government of Himachal Pradesh, I lost 8 times. मुझे कोई उसकी कभी गमी नहीं हुई। I never felt it that I have lost the election. Today I have
I was defeated the other day. I was among us my people. लोगों के बीच में वही मुझे यही लगा नहीं कि कल जो चुनाव का रिजल्ट आया और इतने दिन हम काम करते हैं, काम करने के लिए आए। आप जीतो हारो, प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये कि आपकी जो है एक मंशा क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर एम ऑफ द लाइफ। इफ यू लेफ्ट द जॉब in the person who has passed his MSc degree in 1974, मेरा ख्याल तो यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे उम्र के बराबर भी कोई, मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ बैठे हैं दे आर इक्वल टू माय ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स। आप तो सब बच्चे ही हैं। तो 8 बार हारे, 9वीं बार जीत गए। अब वो 9 का आंकड़ा सही मेरे लिए फिट बैठा है या क्या नहीं, वो तो मैं प्राइम मिनिस्टर महोदय से पूछने वाला हूं। पर ये लाल टोपी का मैंने इसलिए कहा कि हमने उसको पहना, अपनी हिमाचल प्रदेश की आइडेंटिटी को बरकरार रखा। आप महोदया, स्पीकर महोदया, यहाँ पर जिस तरह से आपने संचालन किया, ऑलमोस्ट जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, राइट फ्रॉम द क्वेश्चन आवर टू दी, I think you have introduced one of the bill concerning university. बहुत अच्छा डिस्कशन। मुझे लग रहा था कि आप में से कोई ही नहीं, बहुत से अच्छे नेता निकलेंगे। वैसे नेता शब्द पिछले दिनों जो है, नेता शब्द जो है एक गाली बन गया। किसी को बोलो नेताजी आओ, नमस्ते नेताजी, वो यूज्ड टू फेल्ट। पहले तो लोग प्री इंडिपेंडेंस and after some time after the independence, नेता शब्द ऐसा होता था कि आई एम प्राउड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए मर मिटते थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, वो नेता बनता। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडेंशियल इन द सोसाइटी। हमने अपने घर भरना शुरू कर दिया। मैं अपने फायदे के लिए बात कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए फायदा कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो नेता शब्द जो है गाली बन गया। तो हमने अब 8 बार हार गया, 9वीं बार जीत गया। जो कभी पंच नहीं रहा पंचायत का, उसको आप मेंबर ऑफ द हाउस बना दो, लोअर हाउस का, जहां पर क्रीम ऑफ इंडिया, यानी नेताओं की जो क्रीम है इंडिया की, इतने सारे सभी इस देश के 135 करोड़ लोग जो जिताते हैं, उसमें एक आदमी क्या बोलेगा तो एक पंच में नहीं रहा। पर आई यूज टू हैव some speciality in the sense that I was a student leader. HP यूनिवर्सिटी नई बनी, तो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ। हम MSc में नए आए एंड द यूनिवर्सिटी वाज न्यू टू अस। अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो स्टूडेंट से बोला, अरे भैया हम 2 बार साल में एग्जाम देंगे, हम एग्जाम ही करते रहेंगे। तो इट वाज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका आधा जो है सिलेबस में से आपका खत्म हो गया, फिर अगला आपके लिए शुरू हो जाएगा। पर हमने थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश में जो है स्ट्राइक कर दी। डॉक्टर वाइस परमार यूज्ड टू बी आवर चीफ मिनिस्टर। तो ले देके मेरा कहने का मतलब है कि हमने स्टूडेंट्स की मूवमेंट को भी आगे जोड़ा, टीचर्स की मूवमेंट को भी जोड़ा, एम्प्लॉइज की मूवमेंट को भी जोड़ा, एज एंड व्हेन। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरिस्ट जो आपने यहाँ पर बिल लाया था आज, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या कौन बोले थे, मैंने लिखा है उसमें, एग्रीकल्चर पर जो बोलने वाले थे, ये 3-5 कॉलिंग अटेंशन पर आपने बहुत अच्छी बात कही। 3-5 राहत खड़ा, बहुत अच्छा उन्होंने रखा। ऐसी जब 3 ऑपोजिशन मेंबर्स में जो है उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब 3 आई थी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने वहां पर एक जाति, हमने कहा कुछ तो करना है, क्योंकि अनुभव तो था ना, हमने बोला कुछ करना चाहिए और लगे कि भी हिमाचल से कोई आया है। तो हमने एक वहां पर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस, ही मे बी इन द ऑपोजिशन, ही मे बी इन द रूलिंग, बट दैट इज नॉट मूव्ड बाय द मिनिस्टर। मिनिस्टर जो करेगा वो ऑफिशियल बिल होता है, पर बाकी सब आप जो है वो अदर देन मिनिस्टर जो है वो अपना
एक बिल ला सकते, पर मैंने रेजोल्यूशन लाया। मैंने रेजोल्यूशन क्या लाया? बिकॉज आई वॉज ए हिली पर्सन, आई वॉज ए पहाड़ी पर्सन। यहाँ तो खैर आपके मद्रासी से लेकर आपके जो है वो पहाड़ी ढाठू वाली तुम्हारी बेटी बैठी हुई है, दूसरे महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर बताया सारा आपने इकट्ठा कर दिया। पर मैंने तो कहा भाई मैं तो पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ी होने के नाते मुझे हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट में जो है वो पहाड़ी होने के लिए जो है उनको पता लगे कि पहाड़ में भी कुछ ब्रेन रहता है, पहाड़ में भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेवकूफ लोग नहीं रहते हैं, वो भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमने वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया, रंगा जी। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन क्या होता है? प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, एनी मेंबर हु इज मूविंग द रेजोल्यूशन हु व्हाटएवर ही वांट्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप पहाड़ी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, द गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक बट दे शुड कंसीडर फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए बोर्ड, हिल बोर्ड, hilly board for hilly people, board for development, board for hilly people। हमने उसमें 3-4 चीजें दे दी कि ये चीजें होनी चाहिए ताकि हिल्स का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हालत बहुत खराब। 2009 में, इससे पहले की भी बात आप देख सकते हैं, एक आपको रोड बनाना है तो 1 किलोमीटर के लिए दिनों लग जाते हैं, महीनों में लग जाते हैं। इतने टेरेन, हमारा इतना हार्ड टेरेन है, उसमें करोड़ों रुपया लग जाता है। परंतु जो हमारा प्लेन्स का एरिया है, प्लेन्स के एरिया में आप जो है वो यहाँ की 1 किलोमीटर सड़क, वहां की आप 20 किलोमीटर के बराबर, 25 किलोमीटर के बराबर सड़क, पैसा नहीं मिलता। तो उसके लिए अलग से बोर्ड गठित करेगी सरकार, तो उसके लिए जो है सब कुछ उसके ऊपर चर्चा भी हो, उसके लिए जो है बजट भी जो है वो प्रावधान अलग से हो। तो हमने इस चीज को वहां पर रखा। अच्छा, रख दिया तो दे दिया। स्पीकर महोदय, तो आपके क्या होता है कि अब 10 आदमी ने दिया या 50 आदमी ने दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें पर्ची डालते हैं। 50 पर्ची पड़ गई तो उसमें से पर्ची जो है वो निकाल दी जाती है, 1 2 2 1 वाली। और आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरा एक वहां पर पीए था, वो बाय द वे जो है लोकसभा में ही वॉज डिप्टी डायरेक्टर, तो वो मेरा पीए का काम करते। उन्होंने कहा कश्यप जी आपका तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आ गया, यू आर द फर्स्ट टू स्पीक ऑन योर रेजोल्यूशन। मैं घबरा गया, नहीं होता ही है, क्या बोलेंगे इतने बड़े हाउस में जहां पर सारी गवर्नमेंट बैठी और ऑपोजिशन के लोग बैठे हैं। तो मैंने बोला चलिए वही मान लेंगे कि जनसभा को ही संबोधित कर रहे हैं। बट आई प्रिपेयर्ड दैट फॉर 7 days कंटिन्यूसली। आजकल बड़ा अच्छा है, गूगल पर वगैरह में सारा कुछ आपको मिल जाता है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से मैंने कहा डिप्टी डायरेक्टर को आप खूब सारा मटीरियल लाओ, ले दे के मैंने सारा लिखा और उसको फिर टाइप करके उसके 20 पेज बन गए, 20 पेजेस वो टाइप इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों जैसे लिखा। कोई लेट तो नहीं हो रहा स्पीकर महोदय? क्योंकि अब इन बच्चों के साथ जो है कल ये बनेंगे तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस अगर नहीं बोलूंगा तो आई थिंक वो अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट में ही बोलूंगा थोड़ा, क्योंकि ये इसके साथ साथ जुड़ा हुआ कि जो आदमी 8 बार हारा हो, 8 बार हारा, आई नेवर बोलता, 9वीं बार जीता तो खुशी भी कोई नहीं थी, पर खुशी इतनी की थी कि जीत गए। जीत के बाद जो है मेरा रेजोल्यूशन लग गया तो भाई मजा आ गया। तो देन वो जैसे स्पीकर महोदय ने बोला, आई टर्म शाम को जैसे आती है, आफ्टर लंच आता है, प्राइवेट मेंबर आया तो ठीक है, आया तो मैंने शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो करते करते जो है वो फिर मेरी फ्लो भी जरा वो लिमिट वाली हो गई। आई स्पोक फॉर 43 मिनट्स, तो फिर वो चला और 3 दिन तक वो हर शुक्रवार को आता है, हर शुक्रवार को, तो 3 शुक्रवार को डॉक्टर अपने प्रमोद जी वो 3 बार कंटिन्यूसली 3 शुक्रवार को चला। अल्टीमेटली जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है या रेजोल्यूशन होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको सब कह देते हैं कि यार इसको विड्रॉ कर, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट को अगर वो पास हो जाए प्राइवेट मेंबर का और अपोजिशन का आदमी हो तो इसका मतलब तो सरकार ही गिर गई, दूसरी उसको विड्रॉ कर सकते हैं भाई बंदी में। तो हो गया, सुषमा स्वराज जी उस वक्त हमारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मेरा नाम भी थोड़ा चमक गया, सब कुछ, और सबने बल्ले बल्ले कर दिया।
जैसे आप सफाई कर रहे थे ना, ऑपोजिशन के लोगों ने भी और इस तरह भी तो हो गया। तो मैंने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, लाइफ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो वो आप भी बच्चे हैं, आपका ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। कोई जरूरी नहीं है काम छोटा हो बड़ा हो, कोई सरकारी कोई जरूरी नहीं है कि आपके सभी आईजीएस होने चाहिए। आईजीएस तो है नहीं, फिर आईएएस होने चाहिए, आईआरएस होने चाहिए, या आप में से कोई जज बनेंगे, या आप में से कोई, अरे साधारण सा अगर कोई किसान का बेटा है, आज तो सरकार ने इतनी योजनाएं ला दी, मोदी सरकार ने खास करके कहूंगा कि इतनी योजनाएं लाई हैं कि अगर जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर उसके पास में, दिस इज माय चैलेंज, दो आई में एग्रीकल्चरिस्ट, मैं एक टीचर का बेटा हूं पर हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पर अगर 5 बीघे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, अगर 5 बीघे किसके पास लैंड है दैट मे नॉट बी इरिगेटेड अंडर इरिगेशन लैंड, वो ऐसी सुखी हो, पर वो सुखी जमीन से भी वो सोना निकाल देगा, उसको पैसा भी मिल सकता है, पानी की योजनाएं भी मिल सकती हैं, जैसे आपका रेन हार्वेस्टिंग की योजनाएं हैं, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट दे दी। पर व्हाट्स हैपनिंग, हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर। मैं आपको, जब मैं एमपी था, आप ताज्जुब करेंगे कि बच्चे एमए बोलते थे कि हमारे को ये जो ये टीचर लगा रहे ना इसके पीटी के लिए, तो उसमें लगा दो। कोई बोलते हैं हमें सफाई कर्मचारी लगा दो, एक के तो मैंने झापड़ दे दिया, अरे तू एमए है, तू बोलते सफाई कर्मचारी, तुम्हारा यानी इतना वो गिर गया है स्तर कि तुम अपने काम ही नहीं करना चाहते, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। लीगल जो या साइंस के लोग या आर्ट्स के लोग हैं ह्यूमैनिटीज में, दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूं कि द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेजर जो रोल रहा वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, शिक्षित बनो। शिक्षा पर उन्होंने इतना स्ट्रेस दिया था सबके लिए। दो ही वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, नो, महिलाओं को अधिकार अगर देने का प्रयास किया तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको जवाहरलाल नेहरू के जो कैबिनेट से है वो रिजाइन देना पड़ा। और वट इशू, महिलाओं के इशू पर उन्होंने रिजाइन दिया। तो बहुत कुछ हो सकता है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है। अब तो आपको बहुत अच्छी, यहाँ पर आईटी का मिनिस्टर साहब को उधर से क्वेश्चन आया था, जमाना इसी का है सारा। आपकी ये जो सब कुछ है ये जेब में है। हमारे जब मैं 72 में आया एमएससी में, तो हमारे फिजिक्स के जो है वो प्रोफेसर थे डॉक्टर वाजपेयी, और वी हैड ए वेरी गुड academicians here in physics also. यानी अमेरिका से वो स्पेशली आरके सिंह हमारे वाइस चांसलर तो किसके लाए, तो वो कहा करते थे, क्लास में हम 18 स्टूडेंट थे, 18 स्टूडेंट में जब वो पढ़ाते तो बोलते थे कि ये हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को हम ये माचिस की डिबिया में जो है वो बंद कर सकते हैं। हम बोलते थे क्या क्या, पर नहीं, when there was a derivation, मैथमेटिकल डेरिवेशन जब करते थे तो वो फार्मूला तो सही आ जाता, तो वो मानना पड़ता था, तो मान लिया था उसमें। तो हम बोलते थे आज वो स्थिति है, आज आपके पास सारा कुछ जेब में है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तुरंत आप अपनी जेब से निकाल सकते। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जीतो हारो, फेल हो जाओ पास हो जाओ, पर आपका अगर ऑब्जेक्टिव सही है, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो जनता आपके पीछे चलेगी, देश आपके पीछे चलेगा। महात्मा गांधी जी के पीछे क्यों लोग चले, एक डंडा एक सोटी लेके एक लंगोटी को पहन के चला सारे देश में। अंग्रेज जो है उनकी जो है वो बड़ी वो करते थे कि क्या भिखारी वाला इस देश को क्या वो क्या आजादी दिलाए, परंतु उद्देश्य सही था कि इस देश को आजाद करना है अंग्रेजों के क्राइम से। तो दुनिया ने सारा देश उनके पीछे, ये इस तरीके की सारी
बहुत सी चीजें हमने कोशिश वहां पर प्रयास किए थे, तो मैं आखिर में थोड़ी सी आपसे तो गुजारिश करना चाहता हूँ, फिर बीच में बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि कुछ आप बताओ कि आज क्या हुआ, मोटे मोटे तौर से बीच में क्या हुआ। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आपने पढ़े होंगे साथ में। हैव यू एवर गॉन थ्रू टू अडॉप्ट दैट? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में हमने कभी सोचा? उस पर चर्चा ही कोई नहीं होती। मेरा राइट है, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं जो मर्जी बोल दूं, जिस धर्म के खिलाफ बोल दूं, मैं जिस जाति के खिलाफ बोल दूं, मैं जिस वर्ग के खिलाफ बोल दूं, मैं किसी महिलाओं के खिलाफ बोल दूं, किसी दलित के खिलाफ बोल दूं, बिकॉज दिस इज माई राइट, फंडामेंटल राइट। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। बट क्या हमने ये कभी सोचा कि हम मैं जो बोल रहा हूँ, इस बोलने का इसकी दिमाग पर, इसकी जिंदगी पर, या हमारी सोशल जो हमारा सेटअप है उस पर क्या असर पड़े? तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या कहो कि जो हमारी यानी ड्यूटीज हैं, जो 51A में उसको इनोवेट किया गया, और उसके बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट it was brought in 1976 when whole of India was under emergency। तो इमरजेंसी के दौरान जो है वो संविधान को दरकिनार कर दिया गया। सारा देश, लाखों लोग जो है अंदर बिहाइंड द बार्स थे, और उस वक्त दो अच्छे जो है मैं कह सकता हूं उसमें अमेंडमेंट्स आई। एक अमेंडमेंट तो ये कि आपका प्रियम्बल जो है वो थोड़ा चेंज किया गया। क्या आपका होता था सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक होता था, तो उसमें आपका सोशलिस्टिक सेकुलर वो फिर उसमें जोड़ा। एक तो ये, और एक यूनिटी ऑफ इंडिया का ऑफ द नेशन करके, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दो चीजें अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। इसी के साथ साथ जो है मैं कह सकता हूं कि ये जो फंडामेंटल हमारी जो ड्यूटीज हैं इसको भी जोड़ा गया। 10 थी, 11वीं जो है वो बाद में जोड़ी गई 2002 में। 2002 में यानी जो 86 अमेंडमेंट जब आया, तो उसमें ये कहा गया कि इस देश के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो बेचारा गरीब है, जो हमारी बेटी है, बेटी को पढ़ाना हमारा पाप समझते थे पहले। बेटी बड़ी हो गई, बस इसको 10-11 साल की, बस इसकी शादी के बारे में सोचो, बेटियों के बारे में नहीं। इस जो ये जो हमारा पुरुष प्रधान जो समाज है, ये इतना दबा कुचला जो है, इतना गंदा यानी सोच का हमारा ये समाज है। मैं भी उसी समाज से आता हूँ, परंतु हमने कभी बेटियों के बारे में ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरी बेटी जो हवाई जहाज उड़ाए, मेरी बेटी जो फौज में दाखिल हो, अच्छी टीचर बने। नहीं, मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि मैं क्यों बोलता हूं इस बात को। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे ऊपर बीती। माय फादर वाज ए टीचर, प्राइमरी टीचर। वी वर 10 एंड रादर वी वर 10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे से ऊपर 2 सिस्टर्स हैं, और ये 10 के 10 भाई बहन जो दे ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट। 2 बहनें हमारी गुजर गई, एक डॉक्टर एमडी थी, एक जो है वो लाइकली टू बी डिप्टी डायरेक्टर इन एजुकेशन, वो नहीं है। पर हम आज जो है 8 भाई हैं, ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट। माई सन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट है, बाकी भी सब है। एक आपके जैसे वाइस चांसलर मोदी यहाँ पर बैठी है, तो वन ऑफ माय यंगर ब्रदर आपके आईजीएमसी में ही वाज द प्रिंसिपल हियर, देन ही वेंट टू कल्पना चावला इंस्टीट्यूट, ही बिकेम डायरेक्टर देयर। ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन ही उसकी जो है वो मेरिट के आधार पर जो है वो वहां पर डिक्लेयर हो गए। और उसके बाद अभी जब 2 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ पर हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी, तो देन ही वाज सिलेक्टेड एज द वाइस चांसलर। ही इज वाइस चांसलर। एक प्रोफेसर हमारे यहाँ पर आईजीएमसी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, पर उसको भी दिमाग में कीड़ा घुस गया राजनीति का, और उसने नौकरी छोड़ के आगे वो 16 से चुनाव लड़ लिया, 300 वोटों से हार गया। सिस्टर हमारी बड़ी, ये बात मैं आपको 1953 की कर रहा हूं। सिस्टर विक्रम महोदया, सिस्टर हमारी थी, वो 5वीं पास कर गई। पिताजी थे टीचर थे, तो उन्होंने बेटी को पढ़ा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, सब बेटियों को बोल रहा हूं कि आपकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी।
ऐसे तो हम बहुत बोलते हैं, देवी का रूप बोल रहे हैं, माँ का रूप भी है, बहन का रूप भी है, बीबी का रूप भी है, क्या क्या रूप ने हमने दिए, परंतु उनको आगे जो है वो हमको महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी मानसिकता क्या है। यहाँ पर आ रही थी बात, वो छोटी बेटी बोल रही थी कि रेप हो रहा 8-8 साल की 6-6 साल की बेटी की क्या मानसिकता है। पर मेरा यही कहना है कि एजुकेशन होगी, बहन को जो है अल्टीमेटली पिताजी को जो है झेलना पड़ा। नाना जी ने हमारे जो है हमारे घर आना बंद कर दिया, माता जी को कह दिया कि भाई तू अगर अपनी बेटी को अगर स्कूल से नहीं छुड़ाएगी तो मैं तो तेरे घर नहीं आने वाला, तुम्हारी नाक कटानी। बोलिए, पढ़ लिख रही लड़की तो नाक काट रही उनके। अल्टीमेटली शी बिकेम अ वेरी गुड टीचर, तो टीचर बन गई और फिर उसने कोऑपरेट किया, पेरेंट्स को, फादर को कोऑपरेट किया, एंड ऑल अदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स दे बिकेम गुड एजुकेशनिस्ट, अच्छी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की। अगर वो ना पढ़ती तो हम भी आज जो है एमएससी ना होते, आज भी हम जो है एमएससी फिजिक्स हम का रोल बहुत ज्यादा होता है, बेटी का रोल घर में सबसे ज्यादा होता है। बेटी क्या क्या सोचती है, साल का त्योहार आ जाएगा, बेटी की शादी हो गई तो उसको क्या रहता है, फिक्र क्या रहता है कि मेरा भाई ठीक है, मेरी माँ ठीक है, मेरा जो माँ बाप का परिवार सही है, सोच वही रखती। तो आज सशक्तिकरण के लिए आज बहुत सी योजनाएं सरकार ने लाई है, उसका लाभ हमको लेना चाहिए। मैं बेटी को कहना चाहता हूँ खास करके, एक बाप होने के नाते, एक बड़ा होने के नाते, कि तुम बेटियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो यहाँ तक पहुंच गई, आपको आगे ले जाना, आपको उन बच्चियों को भी आगे लाना है जो इन चीजों को नहीं कर पाती, तो आप उन चीजों को करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी ड्यूटीज हैं उसकी तरफ हम भी ध्यान दें, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी जो है वो जरूरी है, हम उसको अडॉप्ट करें लाइक आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये होना चाहिए। मैं अंत में, क्योंकि लंच की तो चलो बहुत बार खा लेते हैं, लंच तो रोज ही खाते हैं, तो मैं दोबारा कहता हूँ आप बुलाएंगे कि नहीं आएंगे, बट जो यहाँ पर हुआ है मैं इसलिए थोड़ा बोला कि बच्चे कल का भविष्य हमारे देश का, बहुत अच्छे मंत्री बहुत अच्छे बनने वाले, अगर कोई इस लाइन को भी पढ़े लिखे हुआ आने चाहिए, अच्छी सोच रखने वाले अगर वो मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं तो हमारा देश सही दिशा में आगे चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ एक अंत में मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहता हूँ। एक स्पीकर महोदय, अब पहले थोड़ी सी गलती क्या होता है कि जब आप कॉल करते हैं किसी क्वेश्चन सच एंड सच, तो दी मेंबर फर्स्टली उसको क्वेश्चन नंबर बोलना है, क्वेश्चन नंबर 102, फिर उसके बाद वो क्या क्वेश्चन है उसके ऊपर वो अपना ऐसा ऐसा। तो मेरे लग रहा था कि शायद किसी ने सीधा ही अपना क्वेश्चन कह दिया, पर उसको ये लगना चाहिए कि यस दिस इज वो, ये मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई इसमें फ्लॉ नहीं है, बट आई थिंक इट वुड हैव बीन देयर। तो आपका 100% बहुत अच्छा, 99.99 जो है पॉइंट अच्छा आपका ये है। इसमें कॉलिंग अटेंशन में जो है 3-5 बहुत अच्छा बोल रहे थे ऑपोजिशन की तरफ से, और होम मिनिस्टर ने जैसे 370 पर जवाब दिया, आपने तो अमित शाह को भी छोड़ दिया। ऑपोजिशन साइड से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिस तरह से इन्होंने टिप्पणियां की वो लाजवाब थी। आई डोंट नो, मेरे ख्याल एक बेटी यहाँ खड़ी थी 36 प्रेजेंटेशन, योर प्रेजेंटेशन वाज गुड। आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया अपने मामले को, वो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के थ्रू ही आपने अच्छा किया, तो आप बेहतर, मैं कह सकता हूँ मेरी यहाँ पर और फिर 16 नंबर आप मेरे ख्याल में वो लाए, आप लाई थी, बहुत अच्छा अपने यूनिवर्सिटी का जो है वो बोला, बहुत अच्छी तरीके से वो मैंने लिखा तो सबको ही है
यहाँ पर मैं कहीं डबल प्लस किया, कहीं ट्रिपल प्लस किया है। वो बहुत अच्छा आपने बोला, मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता था, मेरे और दूसरे साथी यहाँ पर बैठते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब का जो है तरह से आगे बढ़े और अच्छी इसमें आप फ्यूचर में मैं तो ही कहूँ कि आप फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और अपने माँ बाप के प्रति, जैसे सोसाइटी के प्रति आपको जिम्मेवार रहना है। माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना। क्या आपका माँ बाप गरीब है? मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप के घर में पूरी तरह से खर्चा नहीं चलता होगा, बट आपको उन्होंने पैसा यहाँ पर दिया यूनिवर्सिटी में बनने के लिए, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए दिया। पर क्या हम कभी अपनी माँ के बारे में सोचते हैं? क्या हमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा? बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, क्या क्या नहीं करते। अरे असली देवी तो वो है जिसने तुम्हें जन्म दिया। मां से बड़ी देवी कोई हो नहीं सकती है। मेरा दिस इज माई कमिटमेंट टूवर्ड्स माई मदर। बाप से बड़ा कौन देवता हो सकता है? व्हाई शुड वी गो टू द मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा? जाए आप, कोई ना नहीं करे, पर आप माँ बाप के जो है पद चिन्हों पर चलने नहीं वाले हैं। और वहां पर जो है, वहां पर जो पंडित जी बोल देंगे और जो है वहां पर और बोल देगा कुछ, तो उस पर चलना शुरू कर देगा। माँ बाप का ध्यान रखो। ये मैं अंत में आपको थोड़ी सी शिक्षा देने के तौर पर कह रहा हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आज आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बेसिकली आने वाले तो कोई और और वो आ नहीं सके। आपको तो बहुत ही अच्छा लगना था वो बातें, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सके। मुझे कल फोन आया कि इन्हीं कारणों से हम नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे से और आपको जाना है अपना कार्यक्रम, पर उस कार्यक्रम से 100 गुना का अच्छा कार्यक्रम मुझे यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी फले फूले। लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया की बेहतर यूनिवर्सिटियों में से निकले वो तभी होगा कि जब आप अच्छी पोजीशन के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर वाइस चांसलर महोदय का धन्यवाद करता हूँ, साहब का, और फैकल्टी मेंबर्स, और खास करके आपका रुचि जी जिन्होंने फोन करके मुझे बुलाया। और अंत में यहाँ पर स्टाफ, सेक्रेटरी स्टाफ है, आपने भी अपनी तरफ से अच्छा काम करने का प्रयास किया। सेक्रेटरी जनरल साहिबा, उन्होंने भी अच्छा निभाने का काम किया। सबने अच्छा काम किया, कोई कमी नहीं आपने रखी, पर इस कमी को कभी खलने नहीं देना। और माँ बाप के प्रति और इस यूनिवर्सिटी के प्रति आप हमेशा जो है वो अपना जो है याद करना है, और इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए आप प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी रिजल्ट होगा वो तो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर से मोहन साहब यहाँ पर आए हैं, तो वो इसका क्या है कुछ जो भी है उन्होंने मिल मिला के, पर मुझे खुशी है, बताएंगे तो वही है। पर मैं देख रहा था कि लगभग हम तीनों एक ही जो है, लगभग एक ही हमने निर्णय, लगभग एक ही लाइन पर, छोटा मोटा ऊपर नीचे हुआ, और बाकी सब इस शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind, knowledgeable inputs. आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपके द्वारा साझे किए हुए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और लोकसभा में आपका द्वारा प्रदान किया हुआ योगदान, ये सब हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम सब इन बातों से अपने इन सुविचारों को अपने ग्रहण करेंगे और आगे जीवन में बढ़ेंगे। Now I request Professor Dr. Sanjay Sindhu to come forward and share his views about the event. Well, thank you, Dr. Ruchi. What I believe the House is still indicated of speaker. So may I? Thank you. Today's chief guest, our honorable former member of the parliament, Honorable Vice Chancellor, National University, Professor Dr. Nishta Biswal, inspiration for all of you and
my institution as well. Dr. Momi, who's coordinating from Parliament. Professor Ranga, my younger brother, very energetic, famous personality in Punjab University. Now you register here. Professor Dr. Ruchi, who is the coordinator of this conference. My helmet, from Himachal Pradesh University, is also deals with the Parliament affairs, and he's a very, famous personality in Himachal. My colleague from Department of Management, Professor Dr. Pramod Sharmaji, Professor S.S. Jiswal, Professor from different faculties, like the teachers and above all students. Now I will play the role of opposition because, as you know, जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत बोली थी और बहुत उन्होंने अच्छे जवाब दिए. ऑपोजिशन ने थोड़ा कम बोला तो मुझे भी ऑपोजिशन का रोल ही प्ले करना है क्योंकि सबके पहले काफी वक्त ले जाते हैं. Well, I must say, I must congratulate that you have clearly mentioned the replica of the parliament. If you go through the proceedings, which are in the LOK Sabha channel, the Rajya Sabha channel, मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं वही देख रहा हूँ. Credit goes to all of you because all of you have represented in a very systematic manner. You are quite inquisitive and you highlighted all the kind of very significant, very important, very conspicuous aspects, which are always there whenever there is any kind of national issue. I'm associated, with the government for a very long time. And besides this, there's so many legislation जहाँ मैंने अपना opinion दिया है, खुद को admit किया है, private university bill है, आपका tourism वाला act है, और अभी recently January में कुछ legislations को भी मैंने suggest किया है, which will be going to Vidhan Sabha for amendment. So this credit goes to you. Being law professionals, no doubt we are concerned with the ordinance, orders, rules, regulation, bylaws, custom, and official notifications. But at the same time, when we are knowing, that how to proceed in a court of law and how to go and how to see the parliament, it's really a very important one. It was the Ministry of Parliamentary Affairs, which decided that we must go for such kind of youth parliament practices. And for that purpose, it was from the Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, when he spoke in the Man Ki Baat, was his concept को introduce किया. और मुझे concept पूरी हुआ, I am feeling proud in saying in this platform, मेरे अपने institute से दिल्ली तक, नरेंद्र मोदी जी तक बच्चे गए हैं, youth parliament, and they represented the state of Himachal Pradesh. And I want to congratulate from this platform, Honorable Vice Chancellor, the Registrar of this university, Professor Ranga, कि आप लोग really बहुत energetic हैं. And moreover, the National Law University, आपने जो ये combination, unity and diversity का आपने mention किया, जो आपने OC different में वो इसकी beauty थी. वो अपने आप में बहुत बड़ी beauty थी. There is a reference of the preamble of the Constitution, and the preamble says that we, the people of India, solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. The constitutional commitment is always through certain objectives, and say justice, socio-economic, political. Your whole of the issues which you raised, ऐसा नहीं है वो commentary आपके mind में आए. When you were speaking, it shows कि कितनी मेहनत आपने उसके पीछे की. कहते हैं ना, आपके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा क्योंकि रुका नहीं आता जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं. कहते हैं लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं. ये आप लोगों के लिए है, आप स्टूडेंट्स हैं, कि लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं. आपसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं. इतने सादा नहीं आपके भटक कर रह जाए, आप जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं. कल को आप, मुझे पता है कि you are from the different parts of this country and when you will go back, आप या तो चीफ जस्टिस होंगे या जजेस होंगे, लर्नड एडवोकेट्स होंगे, आप में से कुछ पार्लियामेंट में भी होंगे. प्रमोद शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, तो आप अगर उनके एकेडमिक्स देखेंगे तो ये तो टॉप है वो अपने एकेडमिक्स में, प्रोफेसर प्रमोद जी. और प्रमोद जी ने भी इलेक्शन लड़े हैं. ये हमारे लिए बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं. और मैं अच्छा लूँ ये गवर्नमेंट अप्लाई, आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो एक कुछ सिचुएशंस होती होती. अब मैं बताना चाहूंगा जैसे आप लोग हैं और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जब कल आप चले जाएंगे, आपके वो चेहरे आज जब मैं सुनूंगा कि आंखों के सामने गुजर करेंगे, तो बड़े ध्यान से ये सब चीजें रहती है. तो कहते हैं कौन कहता है कि खाक को तामीर चाहिए. मुझे ये इंस्पिरेशन बोलने की मैडम से भी या फिर मैडम मिस्टर
कौन कहता है कि ख्वाब को ताबीर चाहिए, आंखों के सामने आपकी तस्वीर चाहिए। हम जाएं आपको ढूंढने और आप मिले नहीं, जिंदगी में ऐसी भी तकदीर चाहिए। I will not take much time and I must appreciate all of you. First आना, second आना, नहीं आना, ये चलता रहता है. It doesn't matter. जो साइलेंट भी थे उन्होंने भी, चाहे ऑपोजिशन में थे चाहे आप रूलिंग पार्टी में थे, लेकिन आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है. आपका जो एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है. सो आई मस्ट से गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड आप लोगों को देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिली है. वी आर स्टिल यंग एंड वी विल डेफिनेटली डू मोर थिंग्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Thank you so much, sir, for your kind words and for encouraging us all. Now I request Dr. B. Momin to give his observation and to declare the results, please. When results will be declared, I request the students to move forward toward the judges' bench to receive the prize. Sir will announce the chest number. The student concerned is requested to move towards the judges' bench. परम आदरणीय वाइस चांसलर महोदय, मिस्टर जसवाल जी, भूतपूर्व सांसद वीरेंद्र काश्यप जी, संजय चंद्र जी, सम्मानित मंच, प्राध्यापक और विद्यार्थी। मैं सबसे पहले इस संस्थान को और मैडम को धन्यवाद देता हूँ. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया. आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. सबका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था. हमारे सामने बहुत समस्या थी. 6 को सिलेक्ट करना कैसे करें. यहाँ तो कम से कम हमारे सामने 16 बच्चे ऐसे थे कि जो अच्छा थे, लेकिन दूसरे जो सिलेक्ट नहीं हुए ये नहीं समझे कि साहब हम नहीं हुए. उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको. और वो सच मायने में वो विजेता है. मैं डिक्लेयर करूँ उसके पहले अपने कुछ विचार आपके सामने रखना. 2 मिनट का टाइम दूंगा मैडम. आप लोगों के सामने बड़ी उत्कंठा होगी, इच्छा होगी. मैं अपना परिचय. ऐसा कि नाम तो मेरा सामने ये भी वुमेन है. हमारा जो रिलेशन है वो है दाऊदी बोहरा समाज. और दाऊदी बोहरा समाज शिया और सुन्नी मुसलमानों से बिल्कुल अलग है. शिया और सुन्नी मुसलमानों से हमारा रोटी बेटी का संबंध नहीं है. हमारा जो समाज है उसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में 15 लाख है, जिसमें से 11 लाख इंडिया में है और 4 लाख जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं. हमारे गुरु एक ही है पूरी दुनिया में. और हमारी आइडेंटिटी ये कि हम सब लोग एक जैसा ड्रेस पहनते हैं. यहाँ तो मैं ये सफारी में आया हूँ, लेकिन हमारा ड्रेस होता है, हमारे साथ कुर्ता होता है व्हाइट और व्हाइट पाजामा होता है और ये टोपी होती है. ये हमारी आइडेंटिटी है. शारजा वगैरह में मैच होता है तो हमारी लेडी जो है वो एक कलरफुल जो है वो एक बुर्का पहने रहती है, तो पहचान में आ जाती है दाऊदी बोहरा समाज की लेडी है, बोहरा समाज का व्यक्ति है. तो हमारी एक आइडेंटिटी है. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भाई कानून बनाना चाहिए कि हर एक को शिक्षा अनिवार्य हो.
कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे समाज में 100% लिटरेसी है, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, और 100% फैमिली प्लानिंग है। कोई एक व्यक्ति आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। छोटे से छोटा बिजनेस करेगा, सुई धागे का भी बिजनेस कर देगा, लेकिन बिजनेस करेगा, नौकरी नहीं करेगा। मैं हमारे वहाँ पे समाज का प्रवक्ता हूँ, तो मेरे पास बीजेपी के भी लोग आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, सब दल के आते हैं, और मेरे से एक ही बात कहते हैं कि साहब इतनी माइनॉरिटी में आप लोग रिजर्वेशन की मांग क्यों नहीं करते। तो मैं इनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे समाज को बैसाखी क्यों देना करते। हमें बैसाखी नहीं चाहिए, हम अपंग नहीं है, किस बात का रिजर्वेशन। अरे हमारे समाज में 95% लोग बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो 50 लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हम क्यों किसी के पास रोजगार मांगने जाए। और जो भी सर्विस क्लास में है वो बहुत ही हाई क्लास के लोग हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, ऐसे लोग हैं। बाकी ये कोई छोटी मोटी नौकरी करने, नौकरी में विश्वास ही नहीं करता। तो मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ, बताना चाह रहा था कि उदयपुर राजस्थान से जहाँ मैं रहता हूँ, उदयपुर और आपका हिमाचल प्रदेश, दोनों में बड़ी प्राकृतिक समानता है। उदयपुर में कुदरत ने 3 चीजें दी, हिमाचल प्रदेश को भी कुदरत ने 3 चीजें दी। उदयपुर में झीलें बहुत अधिक है, और आपके यहाँ हिमाचल में भी झीलें ज्यादा हो गई। गार्डन बहुत है, हरियाली बहुत है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी हरियाली बहुत है। हमारे यहाँ अरावली पहाड़ की पूरी एक सीरी है, अरावली पहाड़ है, आपके यहाँ भी पहाड़ है, और ये तीनों चीजें इंसान को शिक्षा देती। उदयपुर वालों को, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को भी शिक्षा दे रही है, और हिमाचल प्रदेश के आप लोग आपको भी शिक्षा दे रही है। शिक्षा क्या दे रही है? धीरे ये शिक्षा दे रही है कि अपना दिल विशाल होना चाहिए, हृदय विशाल होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। और ग्रीनरी, ये बागान, ये बगीचे, ये शिक्षा देते हैं व्यक्ति को हमेशा हंसमुख होना चाहिए, चाहे कितना भी दिल में दर्द हो, दुख हो, लेकिन रोते हुए मुंह नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ मुंह होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और आप लोगों के लिए खास ये बात है, क्योंकि आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, और आजकल लॉ का प्रेशर जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़ा है। वैसे तो कहते हैं कि भाई 3 कोट बहुत बदनाम, काला कोट, सफेद कोट और खाकी कोट। सफेद कोट डॉक्टर का, खाकी कोट पुलिस वालों का, और काला कोट आपके वकीलों का। ये तीनों कोट बदनाम। तो आप लोगों के लिए ये शिक्षा दे रही है, बाहर ये शिक्षा दे रहे हैं कि सच्चाई के ऊपर अडिग रहना, ईमानदारी और सच्चाई, ये पहाड़ की तरह से अडिग रह करके आप काम करोगे तो जिंदगी में कभी हार नहीं सकते, कभी नहीं हारोगे। आप लोगों को ये खास शिक्षा है, और हम लोग भी ये मानते हैं कि ईमान के ऊपर, सच्चाई के ऊपर और ईमानदारी के ऊपर हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि ढक पछ हो जाए, नहीं। तो ये 3 चीजें हमको शिक्षा दे रही है। तो मैं आता हूँ कि हमने कहा कि आज देश बहुत विकास कर रहा है, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया में भारत का नाम है। यूक्रेन क्या युद्ध की बात हुई थी, यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे। प्रधानमंत्री को जो है साधुवाद देता हूँ, मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता हूँ, कहते हैं लोगों को जो है वहाँ से निकाल के लिया है सकुशल। अभी जो वैक्सीनेशन का भी दौर चला, बहुत उसमें जो है योग्यता के साथ में बड़ी अच्छी तरीके से जो है इसके ऊपर नियंत्रण पाया, सब कुछ किया। लेकिन फिर में एक कसक है। कसक इस बात की है कि आज की 21वीं शताब्दी का इंसान, 21वीं शताब्दी का व्यक्ति, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं, अभी आने वाला भविष्य आपका है, तो एक कसक ये है कि 21वीं शताब्दी का आज का इंसान जो मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहा है, जो क्या क्या बंदा को आविष्कार कर रहा है, वो आज भगवान और खुदा को मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहा है। यहाँ देखो वहाँ मंदिर मस्जिद की जगह चल रहा है। अरे मंदिर और मस्जिद है क्या? यही तो पत्थर की दीवारें हैं, कुछ नहीं है। जब राम मंदिर का आ रहा था फैसला, उसने हमारे वहाँ पे दैनिक भास्कर समाचार निकलता है, उसने सभी समाज के धर्म के लोगों को बुलाया था, मैं भी गया था वहाँ पे प्रवक्ताओं को।
वहीं से वहां पे ये चर्चा हो रही थी, सैंपल लेने आएगा क्या होगा, रक्तपात हो जाएगा। मैंने कहा क्यों होगा, क्या है मंदिर में चलता। तो उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि ना मंदिर में है भगवान, ना मस्जिद में खुदा है। जिस दिल में मोहब्बत है वो उसी दिल में बसा है। इसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर में तो क्या होता है, मंदिर पर जाना, मंदिर पर जाना। आज इसी को लेकर के झगड़े चल रहे। कोई साहब बोलते आ रहे कि पैदा हुआ बच्चा अबोध होता है, नादान होता है। पैदा हुआ बच्चा अबोध होता है, नादान होता है। हर धर्म के लोग अपना अपना रंग जलाते हैं, किसी को हिंदू और किसी को मुसलमान बनाते हैं। तो ये तो आने के बाद में, इस दुनिया में आने के बाद में, अब मैडम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ। आपने मेरे को वैसे दिया है, लेकिन हमारी ये मान्यता है, हमारे समाज की ये मान्यता है कि इस संसार को चलाने वाली एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। हमारे धर्म की जो मान्यता है, हम समुदाय, जो बोरा समुदाय है, उसकी जो मान्यता है, वो मान्यता मैं आपको बता रहा हूँ कि इस संसार को एक शक्ति चला रही है। उस शक्ति का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई आकृति नहीं है, लेकिन है जो इस संसार को चला रही है। हम ये मानते हैं। अब कोई इसको भगवान कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई प्रभु कह रहा है, कोई यीशु कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है। सब अपने अपने तरीके से जो है उनका नाम दे रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से आराधना कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। उनकी आराधना तो शक्ति की हो रही है, और वो शक्ति ही संसार को चला रही है, और उस शक्ति का नाम ही जीवन है। जो आप और हम बोल रहे जिंदा है, जब हम मर जाते हैं, क्योंकि उसका अंश जो है, उस शक्ति का अंश, जब हम पैदा होते हैं, जब माँ की गर्भ में शिशु आता है, कहते हैं जीवन आ गया, परिक्रमा कर रहा है वो, तो जीवन क्या है, वो उसका अंश आता है। जब मर जाता है तो वो अंश अपने पूर्ण में चला जाता है, और ये संसार ढांचा यही का ये नहीं जाता, कोई जलाता है, कोई गाता है, ये स्थिति है। तो हम एक ही भगवान की संतान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई अलग अलग नहीं है। इन सब में एक ही शक्ति का अंश है। ये तो एक लोगों की संकुचित मानसिकता है, ये लोगों की एक संकुचित सोच है कि जो इस तरह के झगड़े खड़े करते हैं एक स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से ये होता है। अदरवाइज कुछ नहीं। धन्यवाद, आपने मेरे को धैर्य से सुना। मैडम अब जिन लोग की इंतजार है, काम तो बहुत कठिन है। फर्स्ट पोजीशन में जा रहा है नंबर 33। नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए, नाम नाम बोल दीजिए। ऋतिक। सेकंड नंबर पे जा रहा है 35। थर्ड नंबर है 7। और नंबर 36। फिफ्थ नंबर 11 11 11 का और 6 नंबर जा रहा है नंबर 1। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इससे भी ज्यादा बड़े विजेता है, और उनको मैं बात करते हैं। क्योंकि हम सब लोगों ने
सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है और हमेशा इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए ताकि आपकी प्रतिभा जो है सामने आती रहे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I am sure that our students will keep these all the observations made by the judges in mind so that they perform in the next level with full josh. Now I request the judges to come forward for distribution of certificates and sir to escort them, please. यहाँ पे आ जाइए। All of you, please come here. फोटो खिंचवानी मौका में बार बार नहीं। आशीष शर्मा जल्दी आओ। मोहम्मद सिंह, जोया जफर, अनन्या सिंह, पीयूष पंडित, विशाखा, सौम्या, सौम्या राजपाल, कोमलप्रीत, कोमलप्रीत, फैज अहमद, अभिषेक प्रताप, पीयूष राज, गौरव कुमार, आयुष चड्डा, शिवेंदु जयमान, वंशिका मान, श्रद्धा आहूजा, विहान आचार्य, मानसी मेहता, हर्ष छज्जर, हर्ष छज्जर, शगुन, पराक्रम, कृष्णा, बेटा जल्दी आइए, श्रेयाश दुबे, श्रुति बराकोटी, श्रुति बराकोटी, आयुष ठाकुर,
Shubham Singh, Jyoti Shandil, Kaushiki Jindal, Rupali, Chandan, Vaibhav Bhardwaj, Tanishq Pratap Singh, Hamza Khan, Aryan Patwari, Dhruv Thakur, Vikramaditya Agrawal, Rohit Dhameja, Yogesh Dhawan, Shivam, Aditi, Mangalam Yadav, Ritik Janata, Arpit Sharma, Shrutika Saha, Iza Hussain, Purvita Sharma, Soumya Sharma, Kartikeya, Kripin, Divya, Kritin, Divya, Sonam, Sajan Thong, Chetna Gaur, Sajan Thong, Chetna Gaur, Yugal Bhatt, Astha Mahesh,
I thank all the dignitaries present here, all the teaching and non-teaching staff, my dear students. मुझे पता है परसों से एग्जाम्स है और आपने कैसे अपनी पढ़ाई को और इस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को मैनेज किया है. थैंक यू सो मच. ये इवेंट आपके बिना नहीं हो सकता था. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका धन्यवाद सर. सर एक पहले नेशनल एंथम कर लेते हैं हम. प्लीज all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता.